least rupees 1,000 towards this fund. Till date, Institute has collected approximately 3.5 crore from 8,300 members. And as you all know, yesterday, Institute made a donation of 16.72 crores and has pledged for 21 crores. So I request you to please share a bit of yours towards this fund. Second point, President Sir has said that we should use ICI Digital Learning Hub, which is a integrated learning management system and a reservoir of both professional and academic learning material. And I also want to bring to your knowledge that some members are not depositing their membership fees to ICI. Either they are employed or they are in their own businesses like that. Institute is thinking, working on this, that if people are not associating themselves with the institute by depositing the membership fee, there may be chances that they have to reappear for 1 or 2 paper again in CA examination. Now, I also request to make maximum use of technology in their offices and also help others in implementing the same. It is also a request from ICI that members of bigger firms are also requested to outsource some work to lady members and members of other members who have less work due as a help during this pandemic. The other point, all members should contribute towards ICI Benevolent Fund and become life members of ICI, this Benevolent Fund. Now, Institute has also increased monthly help to family of our members from 7,500 to 15,000. It is also a request to all of you to read new code of ethics during this period, so that earlier it was to be implemented from 1st of April. Now it will be implemented from 1st of July 2020. There is also one more development, that we can deposit our membership fee for 10 years in one go. Institute is also working on structured CPRs by attending these programs on these webinars and all. It will come in few days. Actually, they are checking how to check the attendance in these webinars. Once this process will be completed, that then we will get structured CPRs also by joining such kind of programs. Now I welcome CA Navya Malhotra ji for deliberating. Now I give my mic to Nakul Saraf. Thank you. Thank you. Now, I would like to introduce you all to Ajay Singhal ji, who is our new ex-officio member, and he will address you all for today's webinar, as well as he will introduce himself. Thank you, Nakul ji, for your kind introduction. And first of all, I would like to congratulate branch Jammu and Kashmir to organize this video conference through Zoom, which we all are doing for last 10-15 days. In such a difficult time to, when there is a difficulty, then there is opportunity. So it's the kind of COVID-19 shutdown and close down, lockdown period, we all have to introduce new things. So we at NIRC and Jammu Kashmir branch has introduced this online video conference programs for the members, and I'm sure this branch is going to do a number of programs for the benefit of the members. And I would like to congratulate C. Lalit Gupta ji, the chairman of the branch, and secretary and treasurer Nakul Saraf ji, and executive member Shalay Razdan ji
for inviting me on this group today. And in fact, Jammu and Kashmir की ब्रांच से और कम्युनिटी मेंबर से तो मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, and they love me lot, I love them lot. बट लास्ट ईयर क्या है कि कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से आना जाना नहीं हो पाया है. दो वी आर डिफिकल्ट टाइम दैट वी कैन नॉट ट्रैवल, but certainly whenever we get the time we'll try to first come to the branch and meet the members at large. और इसी के साथ मैं एक बार फिर से आजकल हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट NIRC में सेक्रेटरी का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास, और इस क्लोज डाउन के टाइम में कोशिश ये है कि मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम दिए जाए. और ब्रांचों के साथ मिलकर अभी हमने कल ही एक प्रोग्राम किया था बैंक ऑडिट के ऊपर, जो कि मोर देन 500 मेंबर्स ने लाइव और प्लस के अलावा यूट्यूब में सभी मेंबर्स ने इसको देखा था. तो आई थिंक इट्स गुड टाइम टू इंटरेक्ट विद द मेंबर्स, एंड आपसे मौका मिलता रहेगा, फ्यूचर में भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे. थैंक यू नकुल जी, थैंक यू ललित जी, प्लीज गो अहेड. Thank you so much, sir. Now I request CA Navya Malhotra to start today's webinar. आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है. और सिंगल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, आपने ज्वाइन किया सर हमारे साथ. इट्स आवर प्लेजर. थैंक्स नव्या, थैंक्स एंड वेलकम टू यू आल्सो. थैंक यू, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, बिकॉज आई बिलीव जब से आप सेक्रेटरी बने हो मैं भी आपसे मिल नहीं पाया हूँ, चाहे हम दिल्ली में ही हैं दोनों. बट फर्स्ट ऑफ ऑल माय कांग्रेचुलेशंस टू यू. 15 दिन के बाद से डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई है. यस, तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट एंड बट नव्या, हमारी मुलाकात हुई थी एक इंस्टीट्यूट में. बस सर वो शॉर्ट मीटिंग है. कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ. और एक चीज बोल रहा हूँ आपको कि इससे स्टार्ट करना चाहूंगा कि सिंगल जी, आपकी टीम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये वेबिनार वाला NIRC में. इवन आई गॉट अ चांस टू अटेंड वन एंड इट वाज अ वंडरफुल किक स्टार्ट कि घर बैठे भी लोग स्टे सेफ स्टे होम रहकर भी कीप लर्निंग वाली सिचुएशन पे आ चुके हैं. Now I would like to thank Nakul, Lalit ji, Shailesh ji, whole executive branch, Jammu, all the participants. नमस्कार सबको. और सबको इसी बहाने हम आज इतने दिनों बाद मिल पा रहे हैं. आई बिलीव ये कोविड में एक सबसे अच्छी चीज ये है कि हम घर बैठ के भी पॉजिटिवली अगर देखें कि हम सीख पा रहे हैं कुछ. आज अगर आप वेबिनार की एक खासियत देखते हैं तो खासियत ये होती है कि हम 1 to 1 सब, आपको लगता है कि स्क्रीन पे है, स्पीकर बिल्कुल मेरे सामने है. जब आप ऑडिटोरियम में अटेंड करते हैं तो लास्ट वाले को लगता है यार आगे वाले को ज्यादा दिख रहा है, तो आगे वाले को ज्यादा टेंशन मिल रही है. नाउ आई बिलीव सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं, सबको इक्वल चांस मिल रहा है. बिफोर आई स्टार्ट द वेबिनार आई वुड लाइक टू कीप अ नोट ऑफ फ्यू थिंग्स कि आई बिलीव क्वेरीज सारी चैट बॉक्स पे कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर आई बिलीव शायद इसको मॉडरेट कर रहा है. तो अगर हम पूरी डेलिब्रेशन में थ्रू आउट कहीं पर भी शॉर्ट क्वेरीज या साइड बाय साइड कोई भी आपके क्विक पॉइंट्स हो सकते हैं जो वहीं पे रिजॉल्व हो सके. आई बिलीव जो सब्जेक्टिव क्वेरी ना हो और जो बहुत बड़ी क्वेरी ना हो वो वहीं पे हैंडल हो सकती है. तो आई बिलीव मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहीं पे टैकल कर ली जाए. एंड लास्ट में वी विल ऑलवेज ट्राई टू कीप अ 10 minutes और 15 minutes वॉट एवर द टाइम सूटेबिलिटी सेज, हम एक ओपन हाउस क्वेरी सेशन भी रख लेंगे. I believe Nakul, I am correct on the path of that. I will do that. ठीक है. So can I start now, or are we waiting for some members to join? Almost all the members have joined, so you can start it, Navya. Okay. So welcome all the members. Today आज हम लोगों ने टॉपिक रखा हुआ है recent developments in GST. उसके साथ साथ मैं आपके साथ रीसेंट डेवलपमेंट से पहले कहूंगा हॉट एंड बर्निंग टॉपिक्स इन जीएसटी. हॉट एंड बर्निंग टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक ये आया कि हमें एक व्हाट्सएप सोशल नेटवर्क्स पे सर्कुलेशन हो रहा है कि एक एडवांस रूलिंग आई है क्ले प्राइवेट लिमिटेड की, जिसने बोला डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन पे आरसीएम पे होगा, यानी कि रिवर्स चार्ज पे होगा. मैं सिंपल से एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों के पास नोटपैड पेन पेपर कुछ होगा सर, प्लीज वो खोल के बैठेंगे थोड़ा सा. मैं आज आपको इसका कॉन्ट्ररी व्यू देना चाह रहा हूं. और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि एडवांस रूलिंग इज ओनली एप्लीकेबल टू द सब्जेक्टिव असेसीज.
the assessee who have taken, who have applied the advanced ruling and the department who have given the advanced ruling, उन दोनों पे बाइंडिंग होती है, ओवरऑल पूरे ग्लोब ऑफ द नेशन पे नहीं होती है हमारे. सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें एडवांस रूलिंग की रिस्ट्रिक्टिव समझना है. रिस्ट्रिक्टिविटी ये है कि हम वो सिर्फ सब्जेक्टिवली उस पे एप्लीकेबल है जिसने ली है, बट ऑन द होल हमें डिपार्टमेंट का कंटेंशन, इंटेंशन और सोच पता लगती है कि डिपार्टमेंट इज थिंकिंग अबाउट प्रो रेवेन्यू एंड हाउ पिकिंग फ्यू लाइंस आउट ऑफ द लॉ कैन मेक द थिंग्स एडवर्स. आज मेरे साथ ये बात हुई कि एडवांस रूलिंग में निकल के आया कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे रिवर्स चार्ज पे होगा. उन्होंने कहा अगर डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन दी जाती है तो वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर 6th सीरियल नंबर में डायरेक्टर की सर्विसेज के अंदर काउंट किया जाएगा और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे होगा. आज सारी कंपनीज ऑल ओवर द नेशन हमारे इस एडवांस रूलिंग पे एडवर्सली इफेक्ट होते हुए अपने आप को पा रही हैं. वो सोच रहे हैं कि डायरेक्टर्स सारी कंपनीज में होते हैं, कहीं ना कहीं कोई रेम्यूनरेशन दी जा रही है, आज तक तो हमने रिवर्स चार्ज दिया नहीं था, 17-18 कंक्लूड भी हो गया और किसी तरह एनुअल रिटर्न भी चली गई और फाइनली क्या पता चलता है कि भाई इस पे तो रिवर्स चार्ज पे होना था. नो डाउट रिवर्स चार्ज का इनपुट आपको उसी टाइम मिलता है जब आप पे करते हैं, बट हाउएवर एक वर्किंग कैपिटल और इंटरेस्ट की लायबिलिटीज दोनों हिट करती हैं. सर मैं आपके कुछ लीगल रेफरेंसेस से स्टार्ट करना चाहूंगा. व्हाई आई विल से नॉट टोटली बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट की साइड से कोई क्लैरिफिकेशन इस पे जरूर आनी चाहिए. Before I proceed further, I would like to share one more thing with all of you that for the year 2020-21, I have been selected as a special invitee to the Indirect Tax Committee. So if anywhere we can raise anything through an appropriate platform to ministries or GST Council, feel free to share with me, sir. So legal references के साथ शुरू करता हूँ थोड़ी सी, और आपको थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन से बाहर करने की कोशिश करता हूं और सेटिस्फाई करता हूं कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे रिवर्स चार्ज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. सर सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सर ये कहता है अ होल टाइम डायरेक्टर, सर ध्यान से सुनेंगे, ये कहता है होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर who is in the whole time employment of the company. सर एक्ट में ही लिखा है कि होल टाइम डायरेक्टर एक एम्प्लॉय भी हो सकता है. आगे सुनिए जरा, एक केस लॉ की रेफरेंस लेते हैं. सिंस जीएसटी इज अ न्यू लॉ, वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड रिकलेक्ट व्हाट द प्रीवियस लॉ रेजिम्स हैड टू से अबाउट दिस. सर एक केस लिखेंगे, केस का नाम है रामाबेन ए थानावाला, रामाबेन ए थानावाला वर्सेस ज्योति लिमिटेड ओआरएस, वर्सेस ज्योति लिमिटेड ओआरएस. इस केस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि डायरेक्टर हु स्पेंड्स होल टाइम टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. सर डायरेक्टर हु स्पेंड्स होल टाइम टू द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी इज अ होल टाइम डायरेक्टर. इस केस लॉ में ये भी कंक्लूड किया गया है. सर जो बंदा अपना पूरा समय, अपना पूरी जी जान लगा के काम करता है वो होल टाइम डायरेक्टर माना जाता है. मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहता हूं आगे प्रोसीड करते हुए. सर इफ लेट मी कंक्लूड फर्स्ट, देन आप कोई इस पे अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे. अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया. सर एक फर्क होता है दो शब्दों में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में. मैं रिपीट करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में. सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? अगर आपके ऊपर, लेट अस सपोज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आज एक कंपनी को इंडिपेंडेंटली कोई सर्विस देता हूं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. सर वो मुझसे इंडिपेंडेंटली मेरी सर्विस हायर कर रहे हैं विदाउट एनी कंट्रोल ऑन माई सेल्फ. मैं अपने कंट्रोल से काम करता हूं, दे डू नॉट हैव अ गाइडेंस फोर्स ऑन मी. सर ये चीज लेट डाउन की गई है, केस लॉ का नाम लिखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता. अगेन आई विल रिपीट द केस लॉ, इट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता. इसमें साफ लिखा हुआ है सर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है बोर्ड के थ्रू.
शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और वो बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में रन किया जाता है। सर अब आप बात समझिए, यहां पर लिखा हुआ है, ए डायरेक्टर इज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और या ऑफ सर्विस, वहां पर लिखा है इट इज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सर एक एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, वैसे ही डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ट्रीट किया गया है इस केस लॉ में। आपको एज अ पैरिटी पे एम्प्लॉय की रखा गया है, आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम नहीं करते हैं। सर आगे लिखेंगे आगे देखिए सर आगे केस लॉ लिखेंगे, रेंट वर्क्स, रेंट RENT, रेंट वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है सर। ये बोलता है कि अगर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की लेग एक ट्रांजैक्शन को सैलरी ट्रीट करती है तो दूसरी लेग उसको ऑपोजिट ट्रीट नहीं कर सकती है। सर अगर इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के ऊपर फॉर्म 16 लगना है, यानी कि डायरेक्टर को उसको अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन में सैलरी के हेड में दिखाना है, तो इसका मतलब है सर्विस टैक्स भी इसको ऑपोजिट नहीं ले सकता। दे हैव टू ट्रीट इट एज अ पैरिटी ऑफ द रेम्यूनरेशन एंड सैलरी, सैलरी हेड में ही मानना पड़ेगा इसको। तो आई बिलीव यहाँ पे इस केस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक थ्राइविंग और गाइडेंस फोर्स मिलती है कि भाई साहब टू सेपरेट लेग्स कैन नॉट ट्रीट सेपरेट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू द रेवेन्यू पोर्शंस। सर लास्ट में एक चीज और लिखेंगे, एक सर्कुलर है MCA का, सर्कुलर नंबर 24/2012 24/2012 dated 9th of October 2012। No, sorry, I'll repeat, 24/2012 dated 9th of August 2012। 9 अगस्त 2012 को आया था। इसमें साफ साफ आपके लिए मेंशन किया गया था कि भाई नॉन होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। सर आई बिलीव इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली दे वांटेड टू से कि होल टाइम डायरेक्टर की सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आगे सर कुछ और थोड़ी सी एक आध और केस लॉ की रेफरेंस लूंगा, फिर इस मैटर को ओपिनियन पे क्लोज करेंगे। सर एक केस लॉ लिखेंगे, मेथन एलॉयज लिमिटेड वर्सेस CCE and ST। अगेन आई विल से Mathan Alloys Limited versus CCE and ST। इसमें साफ साफ क्लियरली ट्रिब्यूनल ने लेट डाउन किया है कि होल टाइम डायरेक्टर इज इक्वल टू एन एम्प्लॉई। सर आज अप्रिशिएट करेंगे एक बात को आप कि भाई सर्विस टैक्स रेजीम से ये इमर्ज हो पा रहा था कि कभी भी डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन जो कि इटसेल्फ होल टाइम डायरेक्टर होगा उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता था। तो लेइंग द सेम प्रिंसिपल्स GST में भी आई बिलीव यही प्रिंसिपल्स लेट डाउन करते हुए उस पे GST नहीं लग पाएगा। हाउएवर मैं आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ मेंशन करना चाहूंगा, प्लीज वो नोट कर लेंगे एक बार। केस है ब्राहम, BRAHM, ब्राहम एलॉय लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ CGST एंड CX, दुर्गापुर का केस है ये। यहां पर साफ लिखा है सर कि रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द डायरेक्टर विद द कंपनी। जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो रेजोल्यूशन पास किया जाता है, वो डिफाइन करेगा आपका कि क्या रिलेशनशिप है कंपनी के साथ एक डायरेक्टर का। सर इसमें उसने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया है इसने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया है कि भाई साहब क्लॉज ऑफ हायरिंग and clause of firing, again I will repeat, clause of hiring and clause of firing is an important evidence of the employer employee agreement। hence मैं ये कहना चाहूंगा सर डायरेक्टर के साथ एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट किया गया होगा, उसमें ये दो क्लॉजेस का मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट एक केस लॉ और रेफर करूंगा आपके साथ और इसको और सब्सटेंशिएट करते हुए मैटर को क्लोज करेंगे, दैट इज एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CCE and ST। Again, I'll repeat, Allied Blenders and Distillers Private Limited versus CCE and ST। ये केस है औरंगाबाद का सर। यहाँ पर भी ट्रिब्यूनल ने एक चीज लेट डाउन करी कि अगर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में
डिक्लेयर किया जाता है डायरेक्टर को एज एन एम्प्लॉय की तरह ही, और एम्प्लॉय में ही उसकी काउंटिंग हुई है कहीं ना कहीं सर पीएफ और ऐसे रिकॉर्ड्स में, तो इसको इक्विवेलेंट टू एम्प्लॉय ही माना जाएगा सर। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी का आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, सब्जेक्ट टू जितनी डिस्कशन मैंने आज आपके साथ करी उसमें ये प्रूव होगा कि सर एक तो वो होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए सर, इवन इफ ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप मैनेजर की डेफिनेशन भी कंपनीज एक्ट में जाके पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा है अ मैनेजर आल्सो इंक्लूड्स अ होल टाइम डायरेक्टर हु इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सर वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को ही मेंशन किया गया है सर। साथ ही साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोर्ड अपॉइंट करता है सर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं सर। देयर आर मल्टीपल रेलेवेंट केस लॉज जो कहते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर, सर मैनेजिंग डायरेक्टर भी टर्म्स के ऊपर ही हायर होता है, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूडेड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। सो हेंस आपको ये मान के चलना है सर, अदर देन नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स, उसी के ऊपर सिर्फ रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आती है, होल टाइम डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं आती है सर। सून वी हैव टू एक्सपेक्ट अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस फॉर श्योर सर। सर यहां तक मेरा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वाला जो हॉट बर्निंग आपके मन में टॉपिक चल रहा है ना सर, वो कंक्लूड होता है। आगे कैन आई प्रोसीड फर्दर नकुल? Yes, Naveen. Yes, Naveen. Just a second. Naveen, basically there are two questions. Yes. First is by Mr. Karthik GK. Mm-hmm. He has written, sir, as per GST Council meeting, due date for GSTR 9 and 9C has been extended. Yes. Notification number 15/2020, 23rd March 2020 issued extension only for GSTR 9 and not for 9C. The date is 30th June 2020. That is not backed by any notification. How to deal with this? मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 136, सर्कुलर नंबर 136 अभी रिसेंटली आया है, एक बार प्लीज आप उसको जरूर रेफर करेंगे, उसमें डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन इन सब मैटर्स के ऊपर आई हुई है ना कुछ, ठीक है? अगर टाइम अलाउ करेगा मैं लास्ट में 136 सर्कुलर पूरा खोल के आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, ठीक है? उसमें मेंशन्ड है सर सब कुछ। Okay. One more query. Whether any relief on GST on membership fees has been sought under COVID-19 conditions? In regard to institute we are talking about? Probably yes. No, as far as I believe सिंगल जी भी लाइन पे हैं, I believe इंस्टीट्यूट की साइड से ऐसा अभी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है इस पे कि दैट मेंबरशिप फीस पे कोई जीएसटी का वेवर है। आई बिलीव उन्होंने कोई 10 इयर्स की स्कीम एक लॉन्च करी है जिसमें भी एज फार एज आई कैन रिकॉल उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं, इंस्टेटेड बेनिफिट नहीं है कि आप 10 साल का देंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट या लेस मिल रहा है, तो टोटल पूरी फीस ही जा रही है और मेंबरशिप फीस के ऊपर अभी तो जीएसटी लग रहा है सर प्रॉपर। Okay. Now we can proceed further. Thank you. ठीक है, सो आई प्रोसीड फर्दर विद नाउ द अनदर सेगमेंट। आज मैं आपके लिए एक आई ओपनर और एक वैल्यू एडिशन सेगमेंट लेके आता हूँ। एक वैल्यू एडिशन सेगमेंट सुनिए ध्यान से, दो सेक्शन नोट करेंगे जीएसटी में। सर आप कहते हैं ना कि हम ये लॉकडाउन के पीरियड में, एक तो आजकल मैं सोशल नेटवर्क पे पढ़ता हूँ लोग लिखते हैं क्वारंटाइन गोल्स। सर इट्स नॉट क्वारंटाइन गोल्स, इट्स लॉकडाउन गोल्स। यू आर नॉट क्वारंटाइंड, यू आर अंडर लॉकडाउन। सर लॉकडाउन के अंदर आप लोग जीएसटी को पढ़े या जो भी अपना टॉपिक ऑफ एरिया इंटरेस्ट है उसको पढ़ रहे होंगे, तो मैं भी जीएसटी पढ़ रहा था, तो आई एक्चुअली गेट टू कलेक्ट 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसकी आज हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। सेक्शन नंबर नोट करेंगे, सेक्शन नंबर 173 एंड सेक्शन नंबर 174। आई बिलीव ये सेक्शंस अभी तक शायद हम लोगों ने विजिट नहीं किए हैं, और अगर विजिट भी किए हैं तो रिकॉल नहीं कर रहे हैं। हम सब वेरी अवेयर हैं, वी आर वेरी मच अवेयर दैट वी हैड अ स्कीम कॉल्ड सबका विश्वास स्कीम इन जीएसटी। सबका विश्वास स्कीम ने क्या बोला था कि भाई आपका ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, और अगर डिस्प्यूट ओपन है तो आप सबका विश्वास स्कीम को ऑप्ट करिए, और उसमें सर इंटरेस्ट और पेनल्टी का तो वेवर था ही था, साथ ही में आपके टैक्स में भी रिलैक्सेशन थी।
Have you ever seen a health scheme like this या benefit incentive scheme like this जिसमें टैक्स के ऊपर भी बेनिफिट दिया गया हो? सर टैक्स के ऊपर क्यों बेनिफिट दिया गया है? आज इनकम टैक्स के अंदर भी विवाद से विश्वास एक स्कीम आई हुई है, उसके अंदर भी क्या उन्होंने इनकम टैक्स पोर्शन के ऊपर कोई वो आपको रिलीफ दिया है क्या सर? नहीं दिया सर। जीएसटी के अंदर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि जीएसटी के अंदर सर्विस टैक्स की अमाउंट के ऊपर भी, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट के अंदर जो टैक्स की अमाउंट है उसके ऊपर भी आपको इंसेंटिव दिया? सर इसको सोचने के लिए मजबूर करना पड़ा सेक्शन 173 और सेक्शन 174 की वजह से। सर अगर हमने 173 और 174 को उस समय ध्यान से पढ़ा होता तो आज 173 174 से साफ प्रूव हो जाता। सर 173 says omission of the service tax provisions। सर प्लीज ध्यान से नोट करिए मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए, इट टॉक्स अबाउट ओमिशन। और सेक्शन 174 बात करता है रिपील, REPAL, रिपील। सर ओमिशन और रिपील में फर्क होता है। आप प्लीज चैट बॉक्स मुझे भी विजिबल है, एक बार ओमिशन और रिपील में कोई फर्क होता है या नहीं होता, बस वन लाइनर, मैं जितनी देर कंटिन्यू कर रहा हूं डेलिब्रेशन, प्लीज ओमिशन और रिपील में डिफरेंस लिख दीजिए सर। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन ओमिशन एंड रिपील अंडर एनी एक्ट और अंडर एनी प्रोविजंस? क्या कोई फर्क होता है इन दो शब्दों में? सर सेक्शन 173 बात करता है ओमिशन की और सेक्शन 174 बात करता है रिपील की। सर ध्यान से सुनेंगे, सेक्शन 173 में बोला सर्विस टैक्स के प्रोविजंस को हम ओमिट करते हैं। सेक्शन 174 में बोला गया कि भाई रिपील करते हैं। रिपील करेंगे किसको? एक्साइज के प्रोविजंस को। रिपील करेंगे किसको? सेनवेट क्रेडिट रूल्स को। रिपील करेंगे किसको? अदर देन जो कस्टम्स के प्रोविजन थे जो अभी भी हैं उनको। वहां पर चैट बॉक्स में लिखा आ रहा है वी डू नॉट हैव अ ओमिशन मींस इट वाज एक्सीडेंटली, रिपील मींस टोटली रिमूव। कोई लिख रहा है कि ओमिशन मींस ओमिट, रिपील सर ओमिशन मींस ओमिट एंड रिपील मींस रेपिलेशन। नहीं सर, थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा उसको। ओमिशन मींस, सर मैं थोड़ा सा, ओमिशन इज रेट्रोस्पेक्टिव। सतीश जी ने बोली है एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हिट करना चाह रहा हूँ सर। ऐसे पार्टिसिपेशन रहेगी ना तो ऐसा लगता है 2 वे चल रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ सर। तो अच्छा लगता है कि आप लोग लिखते रहें, इट मींस आप भी जाग रहे हैं, मैंने आपको बोर नहीं किया और आप सोए नहीं अभी तक। omission means it has gone from the beginning of the time। repeal means retrospective। सर हमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए इस पे। ओमिशन ध्यान से सुनेंगे सर, सर्विस टैक्स ने, सर्विस टैक्स हो, एक्साइज हो, सेनवेट क्रेडिट रूल्स हो या अदर प्रोविजंस हो, आज तक वेल सेटल्ड केस लॉज अवेलेबल हैं सर। ये कहते हैं कि अगर आपका कोई चीज ओमिट की जाती है एक्ट से, या एक्ट ही ओमिट हो जाता है या प्रोविजन ओमिट होती हैं, तो ओमिशंस आर फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से वो एक्ट आया था। सर अगर एक्ट ओमिट हुआ है तो वो एक्ट एज इफ ट्रीटेड किया जाएगा, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन अगर रिपील किया जाता है सर, रिपील किया जाता है और रिपील का इफेक्ट माना जाता है उस दिन से जिस दिन से वो चीज रिपील की जाती है, उससे पहले की डेट तक वो एक्टिव रहता है पूरा। यानी कि सर आज प्रूव हो जाता है कि सर्विस टैक्स तो आज ऐसे माना जाएगा जैसे कभी था ही नहीं, बट एक्साइज माना जाएगा तब तक जब तक 30 जून 2017 थी। सर आज इससे क्या कंक्लूजन निकलता है आप समझिए थोड़ा सा। इससे एक छोटा सा कंक्लूजन आपके सामने प्रूफ करता हूं। सर सर्विस टैक्स की अमाउंट कलेक्ट करने की गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं थी एज पर सेक्शन 173। उन्होंने कहा एक स्कीम लॉन्च करते हैं, इससे पहले ये सब हम पढ़ लें कि सबका विश्वास स्कीम लेके आओ और अगर कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट लग रहा है तो कुछ पे कर दो, 30% 70% जो उसमें उन्होंने इंसेंटिव्स दिए आपको। उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा बंदा बोनाफाइड में डर में कुछ तो जमा कर ही जाएगा। और सर हमने सर्विस टैक्स के डिस्प्यूटेड अमाउंट भी जमा कर दिए हैं सबका विश्वास स्कीम में। सर गवर्नमेंट डू नॉट ओ एनी पावर फॉर कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स नाउ। हाउएवर अब रिपील शब्द पे थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। रिपील शब्द हमारा जीएसटी एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है। फॉर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन अ केस लॉ कॉल्ड कोल्हापुर केन शुगर्स वर्क लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस है। इसमें साफ बोला गया है कि अगर कोई चीज किसी एक्ट में मेंशन नहीं होती तो वी हैव टू गो टू द जनरल क्लॉज एक्ट। सर जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन नंबर 6 नोट कर लेंगे। जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन नंबर 6 कहता है
इफेक्ट्स ऑफ रिपील। सर ये रिपील डिफाइन करता है और इफेक्ट्स ऑफ रिपील बताता है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं इससे। सर 30 जून तक तो सेनवेट क्रेडिट रूल्स एक्टिव थे। 30 जून के बाद जब 1 जुलाई 2017 आया तो जीएसटी रूल्स एक्टिव हो गए। सर आपसे एक छोटा सा सिनेरियो पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों को याद हो कि आपके पास एक अजम्पशन बेस ले लेते हैं, एक स्टॉक पड़ा था आपके पास 30 जून 2017 को, वो स्टॉक आपने कैरी फॉरवर्ड करा जीएसटी में भी। जब आपने वो स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करा जीएसटी के अंदर, तो आपको वो स्टॉक जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया, लेट अस सपोज वो आइडेंटिफाइबल भी है। सर वो स्टॉक 1 जुलाई 2017 के बाद जल जाता है सर, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कैन एनीबडी इन द चैट बॉक्स प्लीज आंसर मी कि क्या ये वाला जो क्रेडिट होगा इसका, कैन आई से यू हैव टू रिवर्स दैट क्रेडिट इन जीएसटी एंड पे जीएसटी ऑन दैट? आई विल रिपीट अगेन। 30 जून 2017 के ऊपर आपके पास एक स्टॉक पड़ा था, उस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, वो स्टॉक आपने कैरी फॉरवर्ड भी किया जीएसटी के अंदर, और कैरी करने के बाद 1 जुलाई 2017 में वो स्टॉक लेट अस सपोज जुलाई 2017 में ही जल जाता है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या वो क्रेडिट जीएसटी के 17(5) के सेक्शन के अंदर रिवर्स होगा और उसके ऊपर जीएसटी पे होगा? कोई कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। सर इमोशन से नहीं सोचना कि आग लग गई और मुझे बुरा लग रहा है, स्टॉक जल गया है। कोई कह रहा है यस। एक मेंबर लिख रहा है हा हा हा, मतलब is it laughing or is it yes yes yes? I believe let's take it in the good spirit, it's yes. चलो laughing sir। चलो अच्छा है, इट्स मेकिंग मोर इंटरेक्टिव नाउ। तो आई बिलीव कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं, मैं इसको मान के चलूंगा। जैसे ही मैंने बोला इमोशन से नहीं सोचना, यस के आंसर ज्यादा हो गए, और जब मैंने बोला कि इमोशन से सोचना है तो नो हो गए। कीपिंग असाइड जोकिंगली, सर हमें प्रोविजन से चलना पड़ेगा। रिपील क्या कहता है सर, ध्यान से सुनिए। जनरल क्लॉज एक्ट, जो मैंने क्लॉज नंबर 6 बोला आपको, सेक्शन नंबर 6 सॉरी, जनरल क्लॉज एक्ट का, सर वो साफ साफ बोलता है इफेक्ट ऑफ रिपील क्या होता है। इफ any proceedings are initiated and has to be continued, it has to be continued only, it cannot be newly initiated proceedings। सर 30 जून 2017 के बाद कोई भी पुरानी प्रोसीडिंग्स लॉन्च नहीं हो सकती आपके ऊपर, मतलब कोई नई एक्शंस नहीं लिए जा सकते आपके ऊपर। हाउएवर अगर कोई एक्शन चल रहा है तो वो कंटिन्यूड रहता है। सर 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी आ गया। जैसे ही जीएसटी आया आपके पास तो 17 सबसेक्शन 5 आ गया आपके पास। वो कहता है अगर आपने कोई क्रेडिट जीएसटी में अवेल किया हुआ है और उसको लॉस बाय फायर होता है तो वो आपको रिवर्स करना है। सर क्या ये जो 30 जून से पहले का क्रेडिट था ये जीएसटी में अवेल किया था आपने? नहीं किया था आपने। इट इज अवेल्ड इन द प्रीवियस रेजीम। You are transferring it to the GST regime through transitional credit form called Tran-1 form. I cannot say it is a credit of GST. Sir, however, आपको बेनिफिट ना लॉस हो तो गवर्नमेंट ने एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, ट्रांजिशनल फॉर्म। सर अगर आप प्रोविजंस को ध्यान से देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ रिपील के हिसाब से 17(5) इन्वोक नहीं हो सकता इस ट्रांजैक्शन में। आपका जीएसटी के अंदर जीएसटी रिवर्सल नहीं होगा इस अमाउंट का और जीएसटी पे नहीं होगा। However, we have to see the dispute कि गवर्नमेंट सेनवेट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से आपका ये क्रेडिट रिवर्स करा सकती है नहीं करा सकती है। बस सर द ओनली मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज दिस। फॉर श्योर सर 100% जीएसटी में ये अमाउंट नहीं पे हो सकता, जीएसटी एक्ट्स को इन्वोक करके नहीं हो सकता, जीएसटी प्रोविजंस को इन्वोक करके नहीं कर सकता। तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ रिपील और इफेक्ट ऑफ आपको ओमिशन समझना होगा। छोटी सी चीज एक लास्ट में कंक्लूड करता हूं इसमें। वी हैव टू टेक केयर दैट देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स और कमेंसमेंट ऑफ न्यू प्रोसीडिंग्स। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग की बात करेंगे तो इफेक्ट ऑफ रिपील कहता है इट विल स्टे कंटिन्यूड। हाउएवर अगर ओमिट हो जाता सर तो आज ये मैटर भी डिस्प्यूट में चला जाता कि ये चीज इफेक्ट कंटिन्यू भी हो सकता है या नहीं हो सकता। सर ये बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि सर्विस टैक्स ओमिट हो गया था और एक्साइज रिपील किया गया। यहां पर आप देखिए थोड़ी सी ऐसे चीजें हैं जो अगर हम और जीएसटी एक्ट में डिग डाउन करेंगे तो हमें और अच्छे से कुछ समझ आएगा। समझ पा रहे हैं सर?
अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ सर, यहाँ तक कोई क्वेरी है? क्योंकि अब मैं इसके बाद बहुत हाईलाइटेड अमेंडमेंट्स के ऊपर चलना शुरू करूंगा। सर 36(4) के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा पक्का। आप लिख रहे हैं महाजन जी कि आईटीसी ट्रांसफॉर्म से इधर आया है तो वो जीएसटी का क्रेडिट एक तरह से माना जाए। सर मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये जीएसटी का क्रेडिट अवेल्ड माना जाता तो आपने जब जीएसटीआर 9 भरी थी अपनी, तो वो जब टेबल नंबर 6 आप भरते थे उसका और उसके अंदर लिखते थे आईटीसी अवेल्ड, तो उसके अंदर आईटीसी अवेल्ड में 6A के अंदर ट्रांजिशनल क्रेडिट कभी नहीं आता था, उसके अंदर नीचे आईटीसी ट्रांजिशनल क्रेडिट का अलग से लिखना पड़ता था। तो इससे ये प्रूव होता है सर वो क्रेडिट अवेल्ड नहीं माना जाता उस पीरियड का। ठीक है महाजन सर? कैन आई कंटिन्यू प्लीज? यस सर। सर अब मैं आपके साथ एक छोटा सा सर्कुलर नंबर 135 डिस्कस करना चाहूंगा। हाउएवर 135 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, नोटिफिकेशन नंबर 16। सर मैं आपको स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड। आई बिलीव सबको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख रही है, ठीक है? ये नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 है। ये नोटिफिकेशन आई हमारी 23 मार्च 2020 को। प्लीज इसको नोट कर लें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। सर ये अमेंडमेंट हमारी ये नोटिफिकेशन हमारी कुछ एक बहुत मेजर अमेंडमेंट्स को लेट डाउन करती है आपके सामने। ये देखिए सर, ये एक हमारा रूल्स में सब्स्टिट्यूशन करती है रिफंड्स के रिलेटेड। सबसे पहले सर सब्स्टिट्यूशन किस रूल में हो रही है? सब्स्टिट्यूशन हो रही है रूल नंबर 89 के अंदर। ये कहती है सर, ध्यान से सुनिए, जब आप टर्नओवर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स लेते हैं, जब भी आप कभी जीएसटी में रिफंड अप्लाई करते हैं तो आप उसको अंदर एक फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करते हैं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज। सर इसने टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल चेंज करी है आपके लिए। सर ये कहती है, ध्यान से सुनिए, ये कहता है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड और the value of which is 1.5 times of the value of like goods domestically supplied or similarly placed by the supplier in the domestic territory, whichever is lower. सर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके सामने दिख रहा है। आज आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसने बोला आपकी टर्नओवर की मैं कैपिंग कर दूंगा कि भाई साहब आपकी टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिफंड मैं कैप कर दूंगा 1.5 गुना ऑफ द टर्नओवर ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिक। सर इसका क्या मतलब हुआ? आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे पास तो भाई 100% एक्सपोर्टर वाला केस है, मैं तो डोमेस्टिक में सेल ही नहीं करता, फिर कैसे 1.5 गुना कैलकुलेट कर लोगे? सर उसने बोला आप नहीं करते तो आपके जैसा कोई सप्लायर प्लेस्ड इन द सिमिलर टेरिटरी हो और वो उस चीज को बेचता हो तो उसका 1.5 गुना कर लूंगा मैं। सर ये हैरानगी, अब थोड़ा सा थियोरेटिकल से प्रैक्टिकल पे जाते हैं। सर ये चीज जो वैल्यू है 1.5 गुना, सब एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। लेट अस सपोज आप कोई एक चीज बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और वो एक्सपोर्ट वैल्यू है 100 रुपए की। सर 100 रुपए की वैल्यू को अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो और वही चीज डोमेस्टिकली 50 रुपए की बिकती है सर, तो इन्होंने बोला मैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस रूल आपकी टर्नओवर मान लूंगा 50 का 1.5 गुना यानी कि 75 रुपए। सर 75 और 100 विच एवर इज लोअर। लेट अस सपोज ये डोमेस्टिकली 80 रुपए का बिकता होता तो 80 का 1.5 गुना होता 120, 120 और 100 रुपए विच एवर इज लोअर, यानी कि सर आपकी 1.5 गुना तक मैक्सिमम कैपिंग हो जाएगी। ये चीज इससे प्रूव होती है। हाउएवर आप कहते हैं ये चीज उनको कैसे पता चलेगी? सर उन्होंने बोला है दिस हैज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर हिमसेल्फ। सर यानी कि अभी ये सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चलेगा और आपको खुद ही अपने एंड पे इसको डिस्क्लोज करना होगा। मैटर क्या होगा सर? मैटर असेसमेंट में जाएगा और मैटर जब असेसमेंट में जाएगा तो वहां पर प्रूव होगा कि इसको कैसे डील करना है। सर वहां पर आपने अगर एक्सेसिव रिफंड लिया होगा तो सर आपका एक्सेसिव रिफंड पे एरोनियस रिफंड की रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। सर 2 सेक्शन जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लें।
सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 74। सर 73 सेक्शन कहता है कि अगर आपने कोई भी टैक्स कम पे किया है, सर 5 सर्कमस्टेंस बोल रहा हूं आपके साथ, टैक्स कम पे किया है, टैक्स पे ही नहीं किया है, इनपुट टैक्स एक्सेस क्लेम किया है, इनपुट टैक्स एक्सेस या गलत यूटिलाइज किया है, या एरोनियस रिफंड आपने लिया है, पांचों सर्कमस्टेंस में 73 और 74 में इन्वोक कर सकता हूं सर। 73 74 इन्वोकिंग में सिर्फ इतना सा फर्क होता है सर, सेक्शन नंबर 73 बात करता है बोनाफाइड यानी कि गुड फेथ इंटेंट की, और 74 बात करता है आपकी फ्रॉडुलेंट इंटेंट की। सर अगर आपका 73 में प्रोसीडिंग लॉन्च की जाएगी तो 73 की प्रोसीडिंग्स के अंदर आपसे नोटिस इशू किया जाएगा 2 साल 9 महीने फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न तक। हाउएवर सेक्शन 74 का नोटिस आपका इशू कर सकते हैं 4 साल 6 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न तक का। सर आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करनी है कि अगर 73 74 में प्रोसीडिंग लॉन्च होती है, आई बिलीव आप मेरे को थोड़ा सा होल्ड देंगे कि मैं उसमें चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आई बिलीव अभी थोड़ी देर के लिए क्वेरीज मैं नहीं देख पा रहा हूँ जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे सुनिए, तो यहाँ पर आपका एक 73 74 सेक्शन काइंडली नोट डाउन, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा सर। हमेशा जीएसटी में जब भी आपकी रिकवरी की बात आती है तो 73 या 74 इन्वोक किया जाता है। सर अभी मैं कुछ दिन पहले एक जगह असेसमेंट्स का वेबिनार ही ले रहा था, तो वहां पर ये तक सामने आया सर कि जब भी आपकी असेसमेंट की जाती है सर जीएसटी में, असेसमेंट के बाद सेक्शन इन्वोक किया जाता है 73 और 74 मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में। सर आपके ऊपर इंटेंट जस्टिफाई करना इज ऑन यू। यहां पर अगर आपका रिफंड 1.5 गुना से ज्यादा हुआ तो मैं आपसे विद इंटरेस्ट वो रिफंड वापस लूंगा। सेक्शन किसमें सर? 73 74। आगे देखिए सर। सर ये चीज प्लीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। सर एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, रूल 96B। 96B सर, आई विल टॉक अबाउट ड्यू डेट्स, आई विल टॉक अबाउट 36(4), आई विल टॉक अबाउट इंटरेस्ट एंड लेट फी। डोंट वरी, डोंट पैनिक सर, मैं उन अमेंडमेंट्स को भी साथ में ले रहा हूं जो शायद आप स्किप आउट कर रहे हैं अभी। सर 96B नाम का एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है। 96B रूल कहता है कि भाई साहब आपने गुड्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी कि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो पेमेंट रिसीव हुई नहीं हुई, कोई कंडीशन नहीं थी। इट हैज ट्रीटेड एज एन एक्सपोर्ट और उसका आप रिफंड ले सकते थे। सर्विस के केस में कंडीशन हुआ करती थी क्या कि 1 साल के अंदर फॉरेन करेंसी में पैसा मिल जाना चाहिए। सर यहाँ पर 96B में उसने क्या लिखा? If the sale proceeds in respect of export goods have not been realized in India within the period of Foreign Exchange Management Act, यानी कि फेमा की जो कंडीशंस कहती हैं अगर उसके अंदर आपको गुड्स का पैसा वापस नहीं मिला बाहर से, तो to an extent of non-realization along with the applicable interest within 30 days of the expiry of said period, आपसे वो रिफंड वापस ले लिया जाएगा। सर यानी कि गुड्स के केस में भी आज मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई, क्या कि पेमेंट फेमा की कंडीशंस के अंदर वो मिल जाना चाहिए। सर अगेन यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर उसने एक ग्लिच समझिए बात का, लिखा नहीं है कि पैसा फॉरेन करेंसी में ही रिसीव हो, पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए। सर ये एक टैक्स प्लानिंग को कर्व करने की कोशिश की गई है। लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनाते थे, रिफंड्स ले लेते थे, पैसा मिला नहीं मिला इट वाज लीस्ट कंसर्न, बाद में क्रेडिट नोट पास कर देते थे और इनपुट का रिफंड ले लेते थे। सर आज उन्होंने उसको भी मॉनिटर करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी है आपके लिए। सर यहाँ पर आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि आपने अंडरटेकिंग देनी है दैट आई हैव रिसीव्ड द मनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। सर आगे मुझे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट और लिखवाना है। सर आपको एक इंपॉर्टेंट आई ओपनर और देके जाना है। सर सर्कुलर नंबर 125 जरूर पढ़ेंगे। सर मैं उसको अभी डील नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो हमारे स्कोप से बाहर चला जाएगा इस टॉपिक से। सर सर्कुलर नंबर 125 इज अ बाइबल ऑफ रिफंड्स, इट इज अ बाइबल फॉर रिफंड्स नाउ। सर सैंक्शनिंग ऑफ रिफंड से लेकर हर चीज रिफंड से रिलेटेड इस ही सर्कुलर में लिखी है। सर 30 पेज का सर्कुलर है, इसमें एवरीथिंग रिलेटेड टू रिफंड्स हैव बीन डेल्ट। यू हैव टू रीड नोटिफिकेशन 16 जो अभी हमने डिस्कस किया आफ्टर सर्कुलर 125। सर अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सर्कुलर नंबर 135। सर ये देखिए, ये लेटेस्ट आया सर।
सर ये कब आया? लॉकडाउन की ड्यूरेशन में 31 मार्च 2020 को। सर्कुलर नंबर 135, a very important circular relating to benefits given to you during the course of this lockdown period sir। यहां पर सर ये सबसे पहला मैटर कहता है बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स। सर यहां पर एक चीज समझिए क्या था सर्कुलर 125 में भी, जब भी आप रिफंड अप्लाई करने जाते थे सर तो क्या रूल कहता था? रूल कहता था अगर आपकी GSTR 1 क्वार्टरली है तो आप क्वार्टरली रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अगर आपकी मंथली है तो आप मंथली फाइल करेंगे। हाउएवर देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन कि आज अगर मेरी मंथली GSTR 1 है तो मैं अप्रैल का रिफंड मई के साथ अप्लाई नहीं कर सकता, मैं अप्रैल और मई को दोनों को क्लब करके भी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकता था। सर यहां पर ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी अगर मेरा मार्च का रिफंड का कुछ पोर्शन था और मैं उसको मार्च के रिफंड को अप्रैल के साथ अप्लाई करना चाहता था तो मैं नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये मुझे रिस्ट्रिक्ट करता था डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के ऊपर ना जाने के लिए। सर ये मुझे डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स पे नहीं जाने देता था, मुझे टैक्स पीरियड डिफरेंट लेने देता था, बट टैक्स पीरियड शुड हैव बीन विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर कहता था। आज इन्होंने बंचिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स भी आपको अलाउ कर दिया है सर। सर उसने 125 को ओवरराइड करते हुए आपको बोला कि आप अब डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के टैक्स पीरियड्स को भी बंच कर सकते हो इन वन रिफंड एप्लीकेशन। कैन आई से दिस कि अगर आपका जनवरी फरवरी मार्च का लॉकडाउन पीरियड का सपोजिंगली एक पीरियड आता है और आप कहते हैं यार मेरी तो कोई टर्नओवर ही नहीं है मार्च में, मैं उसको अप्रैल मई जून में देखना चाहता हूं, तो आपकी अगर क्वार्टरली फाइलिंग है जनवरी फरवरी मार्च की तो आप नेक्स्ट क्वार्टर को साथ में क्लब करके दो फाइनेंशियल ईयर अलग होने के बावजूद मर्ज करके रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। सर दिस इज अ वेरी वेलकमिंग चेंज। आई बिलीव आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। मैं जैसे ही सर्कुलर बंद करूंगा उसके बाद मैं क्वेरी सेक्शन भी देखूंगा और फिर मैं आगे की क्वेरीज आगे के सेगमेंट्स को डील करूंगा। सर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर ने बोली, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये कहता है रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC ड्यू टू डिडक्शन। सर एक केस समझेंगे, पूरा नहीं पढ़ना, केस समझेंगे। आपने एक स्टॉक खरीदा 18% के ऊपर, और जैसे आपने 18% के ऊपर सामान खरीदा, गवर्नमेंट के GST काउंसिल की मीटिंग होती है और उस आइटम के ऊपर रेट कर दिया जाता है 12%। सर आपके पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है बहुत सारा, अब आपने कहा कि वो 18 से 12 कर दिया गया। जब 18 से 12 कर दिया गया, अब आप वो माल बेचने लगे, वो 12 में बिक रहा है। आप कह रहे हैं भाई साहब ये तो मेरा अनयूजुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट पाइलअप हो गया। सर जब इनपुट टैक्स क्रेडिट पाइलअप हो गया तो लोगों ने कहा सोचा कि हम स्कीम लगाते हैं, इट इज एक्यूमुलेटेड ITC ड्यू टू इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और इसका रिफंड अप्लाई कर देते हैं। सर नो रिफंड ऑफ दिस इज लीगली अलाउड अंडर GST प्रोविजंस। उसने कहा ये रिफंड का सिनेरियो इन्वर्टेड का नहीं माना जाएगा, हेंस यू आर नॉट अलाउड फॉर सच रिफंड्स। आगे देखिए सर, आगे ये कहता है, सर ये हाईलाइटेड वाला, सिर्फ आप ये हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स पढ़िए सर। इसमें वो कहता है अगर आपका रिफंड इन 4 सर्कमस्टेंसेस में से किसी एक सर्कमस्टेंस का है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इनमें से एक पिक करता हूं मैं, प्रोविजनल असेसमेंट। आपने कहा भाई साहब मैं प्रोविजनल असेसमेंट कराने जाता हूं, मेरे हिसाब से टैक्स बनता है 10,000 रुपए। ऑफिसर कहते हैं नहीं मेरे हिसाब से बनता है 12,000 रुपए। सर वो प्रोविजनली असेसमेंट कर देता है, आप 12,000 रुपए जमा कराते हैं। फाइनल असेसमेंट होती है, वहां निकल के आता है टैक्स 10,000 रुपए। 2,000 रुपए एक्सेस जो आपने पे किया है आप उसका रिफंड क्लेम करते हैं। सर ये जो आपने 12,000 रुपए उस टाइम पे किया था, कैन आई से इट कैन बी पेड थ्रू ITC और कैन आई से इट कैन बी पेड थ्रू कैश ऑल्सो, या मैं ये कह सकता हूँ दोनों के थ्रू पे हुआ, कैश और क्रेडिट किसी प्रोपोर्शन में। तो आपको एक चीज समझनी होगी, अब उन्होंने कहा कि दिस इज लीडिंग टू अनइंटेंडेड, दिस इज लीडिंग टू अनइंटेंडेड इनकैशमेंट ऑफ कैश बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो उन्होंने कहा अब ऐसा वाला रिफंड अगर ये 4 सर्कमस्टेंसेस का है तो आपको वो रिफंड वापस तो मिलेगा, लेकिन सारा का सारा कैश में नहीं मिलेगा, उसी रेशियो में मिलेगा जिस प्रपोर्शन में आपने वो रिफंड अप्लाई किया था। इन द सेंस वो रिफंड अप्लाई करते समय जो पेमेंट क्रेडिट से जिस रेशियो में हुई थी, जिस रेशियो में कैश में पेमेंट हुई थी, उसी रेशियो में वो रिस्पेक्टिव क्रेडिट लेजर्स में वापस जाएगा, रिस्पेक्टिव लेजर्स में वापस जाएगा शुड से। क्रेडिट लेजर में उसका प्रपोर्शन, कैश लेजर में उसका प्रपोर्शन। यानी कि आज ये 100% रिफंड कैश में नहीं मिलेगा, सिर्फ इन 4 सिनेरियोस में। हाउएवर इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, इसमें उसने साफ लिखा है अदर देन रिफंड ऑफ जीरो डेटेड सप्लाईज।
यानी कि अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिफंड है उस पे ये कंडीशन नहीं लगती है, यानी कि उसमें आपने इनपुट से ही क्यों ना पे किया हो, आपको कैश में पैसा वापस मिल जाएगा। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस थिंग क्लियर राइट। आगे सुनिए, आगे कहता है गाइडलाइंस फॉर रिफंड इन केस ऑफ 36(4) रूल। ये आज की मेरी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है आगे की। सर 36(4) रूल जो कि 20% या 10% आईटीसी की बात करता है, उसकी डेफरमेंट की बात हुई। मैं डेफरमेंट कहूंगा ऐसे, मैं ये नहीं कहूंगा कि रूल सस्पेंड कर दिया गया है, मैं कहूंगा रूल तो फुली एक्टिव है, बट आप पे सिर्फ कैलकुलेशन की रिलैक्सेशन दी गई है। इसने बोला कि अगर आपका रिफंड आप अप्लाई करते हो एंड इट इज अक्यूमुलेटेड आईटीसी, वो क्रेडिट आपको रिफंड नहीं मिलेगा जब तक वो 2A में नहीं दिखेगा। तो यानी कि उसने 36(4) को अपहोल्ड करते हुए बोला कि ये रिफंड अगर आप अप्लाई करेंगे, एवरीथिंग शुड बी विजिबल इन जीएसटीआर 2A, नहीं तो उस पोर्शन का रिफंड नहीं मिलेगा। सर 102A में नहीं भी दिख रहा तो आप उसको मैन्युअली अपलोड कर, नाउ इट इज ओवरराइडेड बाय दिस सर्कुलर। सर आगे सुनिए, आगे इसने बोला कि आप जब रिफंड लेने जाते थे तो इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता आपको इन्वर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर के केस में। सर उसने बोला अब आप को अपने एनेक्सर जो आप अपलोड करते हैं, देखिए उसी के अंदर आपको इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स और HSN SAC आगे ही लिख कर देना होगा और तभी रिफंड एप्लीकेशन अप्लाई होगी। सर अगर आपने इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स लिखा होगा, यहाँ उसका HSN SAC लिखा होगा, उसका रिफंड वो ऑटोमेटिकली बाहर कर देगा, उतने का रिफंड आपको अब मिलेगा ही नहीं। ठीक है सर, यहाँ पर उसने एक आपको एक्सेप्शन दी, जरा प्लीज देख लीजिए। उसने कहा यहाँ पर इन केसेस वेयर, ध्यान से सुनिए, इन केसेस where the supplier has not mandated been HSN SSC on the invoice, यानी कि अगर वो 1.5 करोड़ से नीचे वाला है तो उसको कोई HSN नहीं लिखना था। अगर ऐसे आपने बंदे से सामान खरीदा है, then even the applicant need not mention the HSN of that inward supply, of such inward supply, यानी कि आपको ढूंढने के लिए नहीं कहा जा रहा, अगर इनवॉइस पे अवेलेबल है तो ही आपको उसको एनेक्सर अपने बी में अपलोडिंग के टाइम लिखना है। यहाँ पर आपका सर्कुलर 125, 135 और नोटिफिकेशन 16 रेलेवेंटली जो आपकी अमेंडमेंट आई थी वो मैंने डिस्कस करी। क्या अभी तक आपको कोई क्वेरी है? नकुल आई बिलीव आप देख रहे थे, कोई क्वेरीज? ललित जी? हेलो, हाँ जी सर, कोई क्वेरीज हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट? क्योंकि मेरे को क्वेरीज विजिबल नहीं थी तब तक। सर एक क्वेरी पहले की आ रही थी कि जीएसटी रिसीव्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बिटवीन डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ जीएसटीआईएन एंड डिपॉजिट रिटर्न्स, whether recipient of services will receive credit in GST or 2A। सर आप बात समझिए होता क्या है इसमें, बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप ना रजिस्ट्रेशन का एक रजिस्ट्रेशन नोट, रजिस्ट्रेशन हमारी दो किस्म की होती है। रजिस्ट्रेशन एक होती है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, एक होती है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? जिस दिन मेरा मन किया मैंने रजिस्ट्रेशन ले ली, नहीं लेनी थी नहीं ली। ठीक है सर, मैं 20 लाख से नीचे था, मेरा मन था रजिस्ट्रेशन लेने का, मैंने ले ली। एक मेरी टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर गई थी, या मैं सेक्शन 24 के अंदर कंपल्सरी किसी स्टेटा में फॉल कर गया और मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी कंपल्सरी हो गई। सर दोनों की रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट में फर्क है सर। इफ यू अप्लाई फॉर अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ध्यान से समझ लीजिए, इफ यू अप्लाई फॉर अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिव फ्रॉम द डेट यू हैव द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन ही उस दिन मिली जिस दिन आपको आरसी मिली, तो उस दिन से पहले का इनपुट आप नहीं ले पाओगे। हाउएवर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के केस में अगर आते हैं, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के केस में लॉ कहता है जिस दिन आपके ऊपर कंपल्शन हुई रजिस्ट्रेशन लेने की, और अगर आपने उसके 30 दिन में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी, तो रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन यू बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर सपोजिंगली मैं आज की तारीख जो कि 10 अप्रैल है, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं,
और मैं इसको सपोजिंगली 14 अप्रैल को अप्लाई कर देता हूं और 18 अप्रैल को मुझे रजिस्ट्रेशन मिल भी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। तो यानी कि मैं 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक के इनपुट्स भी ले पाऊंगा। सर समझ पाए ललित जी? थोड़ा सा आगे नकुल, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी है क्या? नव्य, कुछ मेंबर्स क्वेरी क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में लिख रहे हैं, जैसे सर के उमर पास बशीर जी हैं, उनकी एक पहली क्वेरी है जो थोड़ी देर पहले आई थी। इन दिस केस can department raise proceedings for not registering earlier under excise after getting registered under GST? ये शायद आपका वो क्रेडिट वाला के कंसर्न, रिपील और ओमिशन वाला आई थिंक कंसर्न हो सकता है ये। आई थिंक। हाँ, तो इसमें ये कर सकते हैं सर कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर प्रोसीडिंग तो लॉन्च रिपील वाली तो कर सकता हूँ सर। क्यों? क्योंकि वहां पर तब तक वो प्रोविजन था कि रजिस्ट्रेशन लेनी थी, बट न्यू प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर पाऊंगा। आप कहना चाहते हैं अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो ही चला पाऊंगा, आज नई प्रोसीडिंग को लॉन्च नहीं कर सकता मैं। और however if you have taken the GST registration, that is a separate aspect that has not to be anywhere mixed with the other provisions. आगे सर। एक क्वेरी है, who has the power to who has to prove section 73 and 74 cause department will always invoke Always. 74 for extended period. सर बात समझिए, आज क्या मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सेक्शन 74 के अंदर एक लाइन लिखी है रीजंस टू बिलीव। सर रीजंस टू बिलीव कैन नेवर बी इक्वेटेड विद रीजंस टू सस्पिशन। Reasons to believe cannot be equated with reason to suspicion. When I say the same thing, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बोलते हैं भाई साहब कि रीजन टू बिलीव था कि मुझे लगा इसने फ्रॉड किया, मेयरली ऐसे कह देने से फ्रॉड नहीं माना जाता। आपको प्रूव करने लगेंगे जब आप कहेंगे जी देखिए मेरा बोनाफाइड इंटेंट था। सर आप एपिलेट में तो जाएंगे, जब आप एपिलेट में जाएंगे, अपील्स करेंगे, वहां पर आगे जाएंगे, हायर लेवल पे जाएंगे, जब उससे रीजंस टू बिलीव का ग्राउंड मांगा जाएगा ऑफिसर से, वो कहेगा जी मुझे तो सस्पिशन था, तो आपका केस ग्राउंड लेवल से ही 73 का मान लिया जाएगा। सर नोट कर लेंगे एक चीज, 73 74 में एक चीज लिखी हुई है कि अगर 74 में प्रूव हो जाता है कि ये बोनाफाइड इंटेंट था, रेज किया था नोटिस 74 का, प्रूव होता है नहीं जी फ्रॉडलेंट इंटेंट नहीं था, सर वो डायरेक्टली अज्यूम कर लिया जाएगा नोटिस ऑफ 73। आप ये नहीं कह सकते पूरी प्रोसीडिंग्स क्वैश हो जाएंगी। प्रोसीडिंग्स विल डीम टू बी ऑफ 73 देन। यस आगे नकुल प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, आई बिलीव अभी तक आप लोगों को मजा आ रहा है और ये आपका सिंस पहला सेशन है वेबिनार का, तो आपको भी एक नया एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिल रहा है आज। आई बिलीव ब्रांच बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रही है, दे आर होली एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव। आई बिलीव आप लोग भी प्लीज अपना टू वे कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, कहीं भी रोकेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, वीडियो को म्यूट करके बाहर नहीं चले जाएंगे, 1 मिनट के लिए उठ के बाहर नहीं जाएंगे। ट्रीट इट एज अ वैलिड सेमिनार दैट यू आर अटेंडिंग राइट नाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मुकेश जी, यू आर एंजॉइंग। आगे सुनिए सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ और थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा अमेंडमेंट्स को जो अभी रिसेंटली मेरे लिए आई हैं। प्लीज सर्कुलर नंबर 136 देखेंगे सर स्क्रीन पर। आई बिलीव सर्कुलर 136 विजिबल है सर सबको। सर्कुलर 136 प्लीज नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं इसका रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट उठा पाऊंगा, बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं पहले पैनिक सिचुएशन से बाहर करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ डीप डिग डाउन करूंगा किसी चीजों में, कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करूंगा और यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं सर्कुलर। सर्कुलर नंबर 136 डेटेड 3rd of April 2020। सर ये कोविड के चक्कर में देख लीजिए, कोविड के चक्कर में आपको जो बेनिफिट्स दिए गए हैं और जो आपको कंफ्यूजन हो रही हैं वो सारी इस नोटिफिकेशन के अंदर कवर की गई है, सॉरी सर्कुलर में कवर की गई। सर ये कहता है, पहले तो थ्योरी लिखता है सर कि मैंने ये सर्कुलर दिया, ये सर्कुलर दिया, ये वाला दिया, वो वाला दिया। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होते हैं। सर यहाँ पर ये कहता है कि आपने डेट एक्सटेंड कराई है या सिर्फ रिलीफ देने की बात की है।
सर लोग कहते हैं मेरे को लगता है जी रिलीफ दिया है, कोई कहता है मुझे लगता है डेट एक्सटेंड दिया है। सर मेरी आदत ये है, मैं हमेशा फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा कि लीगली ये बात कहाँ लिखी है। सर सर्कुलर देखिए क्या बोलता है। सर ये कहता है 3B की कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, ड्यू डेट्स हैव नॉट बीन एक्सटेंडेड। ये सिर्फ कहता है आपको बेनिफिट दे रहा हूं मैं। बेनिफिट क्या दे रहा हूं? सिर्फ आपका लेट फी वेवर कर रहा हूं और आपका पेनल्टी का कोई क्लॉज इनिशिएट नहीं कर रहा हूं। हाउएवर अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9% का इंटरेस्ट का बेनिफिट दूंगा सिर्फ। सर ये थोड़ी सी खतरनाक बात है, ये समझ नहीं आती हमें। तो इन्होंने कहा यार आपको समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, ये लीजिए केसेस। उन्होंने कहा केस लिख देते हैं और आपको केसेस से शायद समझ आ जाए। उन्होंने कहा लेट अस सपोज आप मार्च की रिटर्न फाइल करना चाह रहे थे, मार्च 2020, उसकी ड्यू डेट थी 20 अप्रैल। 20 अप्रैल तक आपने रिटर्न जमा नहीं करी और आपकी टर्नओवर, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 5 करोड़, मैंने टॉक अबाउट मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर, तो आपको 9% का इंटरेस्ट का बेनिफिट दूंगा मैं। कैसे? उसने कहा अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो ड्यू डेट के, जो कि 20 अप्रैल है, उसके 15 दिन के अंदर, तो इंटरेस्ट नहीं। हाउएवर अगर आप 15 दिन के बाद करते हो तो आपका सिर्फ 9% इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कब तक? सर ध्यान से सुन लीजिए, कब तक? उसने कहा अगर आप सारी की सारी 26-27 जून तक जो भी ड्यू डेट्स मेंशन की गई हैं, तब तक आप सारी अपनी लीगल कंप्लायंसेस कर चुके हो। सर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। उसने बोला 20 अप्रैल तक अगर आपको फाइल करनी थी और आपने करी 2 मई को, यानी कि 15 दिन कब तक होते हैं इसके? सर 20 अप्रैल से लेके 15 दिन होते हैं, आई बिलीव 4 मई तक। सर यहाँ पर उसने बोला 20 अप्रैल से 2 मई तक हो गए 11 दिन, क्या आपका इंटरेस्ट लगेगा? कोई नहीं लगेगा। उसने 15 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं बोला और 15 दिन के बाद कितना बोला? 9%। उसने बोला अगर आप 20 मई को करते हो तो कितने दिन डिले हुआ? 30 दिन, यानी कि फॉर फर्स्ट 15 डेज देयर इज 0 इंटरेस्ट एंड फॉर द अनदर 15 डेज देयर विल बी 9% पर एनम का इंटरेस्ट। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, ये नहीं मंथली करूंगा। आपने ये 20 मई की डेट को, आपने 20 अप्रैल की डेट की रिटर्न को फाइल करा 20 जून को, आपका 61 दिन का डिले माना जाएगा। 15 दिन के लिए 61 माइनस 15 46, 61 माइनस 15 और 15 दिन के लिए देयर विल बी 0 इंटरेस्ट और फॉर 46 डे देयर विल बी एन इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम। सिमिलरली उसने कहा नहीं, अब आपने ये 24 जून को किया तो 50 दिन का। हाउएवर जब आपने 30 जून को करा, सर आपने डेट क्रॉस कर गए। जैसे ही आप डेट क्रॉस कर गए तो उसने बोला कि अब आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट बेनिफिट भी खत्म हो जाएगा और पूरे के पूरे दिनों का 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। सर यहाँ पर आपको एक चीज और बहुत वैलिडली सोचनी है। लोग कहते हैं क्या GSTR 1 की डेट भी आगे चली गई है? मैंने कहा सर GSTR 1 के लिए भी सेम बात लिखी है कि GSTR 1 की भी डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। उसने कहा लेट फी और पेनल्टी और ये चीज इनिशिएट नहीं करी जाएगी। हाउएवर एक चीज आप बात समझिए फिर से, अगर मैंने कहा कि 30 जून तक आपको GSTR 1 भरनी है तो आपकी कोई लेट फी नहीं है, सर आप कहते हैं नहीं मैं ना जुलाई में जाके 5 जुलाई को भरूंगा रिटर्न, तो क्या लेट फी सिर्फ 5 दिन की लगेगी? नहीं सर, लेट फी फिर डे 1 से लग जाएगी। जैसे इंटरेस्ट में इन्होंने बताया ना, फिर पूरे 71 डेज का, अगर आपने 30 जून तक कंप्लायंस नहीं करी थी तो उसने पूरा इंटरेस्ट का लॉस हटा के पूरे ड्यूरेशन पे 18% लगा दिया था। ऐसे ही पूरी ड्यूरेशन की लेट फी इनिशिएट ट्रिगर हो जाएगी। आगे समझिए। आगे उसने बोला आगे देखिए, आगे उसने बोला साफ साफ कि यही चीज GSTR 1 के लिए भी बोली। साफ साफ उसने बोला ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, पॉइंट नंबर 7। उसने कहा कि क्या भाई 36(4) जो रूल है 36(4), यानी कि वो कहता था 10% और 20% का आपको क्लॉज देता था, क्या 36(4) इनिशिएट किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ फरवरी मार्च? सर पीरियड्स लिख लीजिए प्लीज, फरवरी से लेकर अगस्त तक लिखे हैं उसने। उसने कहा फरवरी से लेकर अगस्त तक आपका 36(4) जो रूल है
वो आपको कैलकुलेट नहीं करना, वो आपको यूज नहीं करना, वो आपको अप्लाई नहीं करना, लेकिन इट शैल क्यूमुलेटिवली अप्लाई, सर क्यूमुलेटिवली अप्लाई इन द रिटर्न ऑफ द पीरियड ऑफ सितंबर। सर सितंबर के पीरियड में जाकर मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। सर अब छोटी सी आपको एक चीज बता रहा हूँ, सर मैंने इस पीरियड की ड्यूरेशन में कोई भी इनपुट देखा, मैंने 100% ले लिया, लेते 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 सर मैं सितंबर तक पहुंच गया। जब मैं सितंबर में पहुंचा सर, सितंबर में व्हेन आई रीच्ड, सितंबर में मुझे पता लगता है कि भाई एक क्रेडिट तो फरवरी का आज तक नहीं दिख रहा। सर उस 90% का क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ेगा आपको सितंबर में जाकर, या तो वो फरवरी का क्रेडिट सितंबर तक दिख जाए, अगर नहीं दिखा सर मैं क्या करूंगा सर, ध्यान से समझिए, फरवरी से लेकर सितंबर तक का 2A क्यूमुलेटिवली डाउनलोड करूंगा और वहां पर देखूंगा सबको मर्ज करके कि कहीं ना कहीं वो क्रेडिट दिख रहा है। ये जो 110% की कैलकुलेशन है ये सितंबर में जाकर मैं करूंगा और फॉर द होल ड्यूरेशन टुगेदर क्यूमुलेटिवली अप्लाई करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? यानी कि 36/4 का अभी कोई वैलिडिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ February to अगस्त आपके लिए नहीं है। हाउएवर सितंबर में पूरी फरवरी से लेकर अगस्त तक लगेगी। आगे सुनिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है सर। चेंज क्या कहूंगा, आपके लिए रिलीफ है ई-वे बिल्स के ऊपर। उसने बोला अगर आपके सर बहुत ज्यादा ऐसा हुआ, लॉकडाउन के केसेस में बॉर्डर सील थे, आपके गुड्स प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहे थे, कभी ट्रक कहीं पे डाउन था, कभी किसी को रोक रखा था, कभी कहीं ट्रैफिक के इश्यूज थे, इसलिए उन्होंने बोला अगर ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता तो फिर ये मूवमेंट इलीगल मूवमेंट बन जाती। तो उन्होंने बोला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉकडाउन पीरियड इफ एनी ई-वे बिल एक्सपायर, सर ध्यान से प्लीज डेट मेंशन लिख लीजिए, 20 मई से लेकर 20 मार्च से लेकर अगर 15 अप्रैल 2020 तक आपका कोई भी ई-वे बिल बना था एंड वैलिडिटी ऑफ सच ई-वे बिल हैज बीन एक्सपायर्ड, तो उस वैलिडिटी को एक्सटेंडेड माना जाएगा। कब तक? डीम्ड मान ली जाएगा 30 अप्रैल तक। यानी कि आपको ई-वे बिल की भी टेंशन नहीं लेनी है उसने। आप समझ रहे हैं? अगर कोई ई-वे बिल बना, सर प्रैक्टिकली, अब आप फिर से इसको थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं ये कह रहा हूं ई-वे बिल बना हो और फिर एक्सपायर हुआ। अब आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि ई-वे बिल बना ही नहीं था। सर बन गया और बनने के बाद एक्सपायर हो गया, वहां पर मेरे लिए इशू है, वहां पर मेरे को बेनिफिट है, वहां पर मेरे को रिलीफ है, वहां पे रिलैक्स किया गया। बट आप मुझे कहें कि मैं ई-वे बिल बनाना ही भूल गया, दैट विल बी डेल्ट एज अ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। आगे समझिए सर, यहाँ पर उसने बोला टीडीएस और टीसीएस के जो सेक्शंस होते हैं कि टीडीएस काटना होता है, टीसीएस कलेक्ट करना होता है, तो उसने बोला आपके नोटिफिकेशन नंबर 35 में यू हैव बीन अलाउड टू फर्निश द रिटर्न्स ऑफ द मंथ मार्च टू मे ऑन और बिफोर 30th जून 2020। सर यहाँ पर अब मैं आपसे फिर से थ्योरेटिकल ना बात करते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे बताइए, जब मैंने एक्सटेंशन की बात करी यहाँ पर कि आप यहाँ पर जाकर इसका कंप्लायंस 30 जून तक कर सकते हो, क्या आपको कोई पेमेंट करते हुए, सर बहुत तो गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ डील कर रहे होते हैं जिसमें टीडीएस काटना कंपलसरी होता है आपके लिए, 51 सेक्शन का जीएसटी वाला। सर मुझे छोटी सी बात बताइए, क्या इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में या मार्च से लेकर मई की ड्यूरेशन में क्या आप कोई पेमेंट करेंगे? नहीं, एज एन गवर्नमेंट एंटिटी आप पेमेंट तो करेंगे ना सर कॉन्ट्रैक्टर्स को। उस पेमेंट को करते समय क्या आपको टीडीएस अपने पास कलेक्ट करके रखना है? क्योंकि एनी टैक्स कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट इज आल्सो अ ऑफेंस अंडर जीएसटी। हाउएवर आप मुझे कहते हैं कि भाई साहब अब मार्च से लेके मई तक की सारी आप रिटर्नें 30 जून तक भर देना। सर आप मुझे बताइए ना, क्या टैक्स का पैसा आप कलेक्ट करेंगे? सर टीडीएस तो काटते हैं ना आप उसकी 10 लाख की पेमेंट कर रहे होते हैं, उसमें से 1% टीडीएस काटते हैं और बाकी की पेमेंट कर देते हैं। वो 1% को आप अपने अकाउंट में रखेंगे, करंट अकाउंट में तब तक, या किसी माध्यम से गवर्नमेंट को जमा कर देंगे? क्योंकि रिटर्नों की डेट फाइल आगे की गई है। मैं कहूंगा इसमें रिटर्नों के लिए आपको रिलैक्स किया गया है कि यू कैन फर्निश द रिस्पेक्टिव रिटर्न्स ऑन और बिफोर 30th जून। एक मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स देखना चाह रहा हूं
इसलिए आप मुझे बताइए क्या लिखा है यहाँ पे, बताइए सर। आप 1% को जमा कर देंगे या 1% अपने अकाउंट में रखेंगे, सिर्फ ये बताएंगे मुझे। कीप इन आवर अकाउंट्स और डिपॉजिट। सर डिपॉजिट, बहुत लोग लिख रहे हैं वी हैव टू डिपॉजिट, वी हैव टू डिपॉजिट, वी विल डिपॉजिट लेटर भी कह रहा है सर कोई। सर आप डिपॉजिट की बात करते हैं, अगर मुझे बताइए आप डिपॉजिट कैसे करेंगे। यू विल डिपॉजिट इन कैश लेजर, आप अपने कैश लेजर में जमा करके छोड़ देंगे, यस और नो? यस सर, डिपॉजिट करके कैश लेजर में अगर आप छोड़ते हैं, विल आई ट्रीटेड एज डिपॉजिट ऑफ टैक्स? Till the time I file the return, it is never treated as a deposit of tax. सर अगर आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जाकर टैक्स की डिपॉजिट की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11 दे हैव गिवन रिलैक्सेशन। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन खोलता हूँ वापस। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मैं एक बार चैट बॉक्स हटा देता हूँ, स्क्रीन खोल लेता हूँ, आप देख लीजिए। वो कंप्लायंसेस की बात कर रहा है, मैं भी आपके साथ वो कंप्लायंसेस की लिस्ट भी आपको लिख पाऊंगा जिस पे फॉल नहीं करता। अभी मैं फिलहाल सेक्शन क्या की सर, कंप्लायंस का रिलेशन उसने बोला अगर कोई अदर देन दिस कंप्लायंसेस जो मेंशन करनी छूट नहीं है गई हैं, कंप्लायंस की डेट मैं आपके साथ परव्यू डिपॉजिट ऑफ टैक्स, डिपॉजिट ऑफ tax is treated when the government actually receives such tax. When I say मैंने कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट किया है, it is a totally refundable amount, it is not equivalent to deposit of tax. However, when I say सर आपको अगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप अपनी 3B 30 जून तक भर सकते हो, तो क्या आप टैक्स पहले जमा करते हो? नहीं करते सर, आप टैक्स भी तो तभी जमा करते हो। तो आई बिलीव आप ये पैसा एक अलग अकाउंट में रख सकते हैं, आप अलग से डील कर सकते हैं, आप रख भी सकते हैं। हाउएवर रिटर्न फाइल करते समय ये पैसा ड्यूली डिपॉजिट होना चाहिए, ये मेरा मानना है सर। पर्सनली आप एक चीज और समझेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मैं प्रूडेंट प्रैक्टिस लेना चाहता हूं, तो प्रूडेंटली फिर आप कैश लेजर में ये पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है सर। बट कैसे जस्टिफाई और इस्टेब्लिश करेंगे ये फैक्ट कि कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है वो 3B का पैसा नहीं है, वो सेक्शन 51 का पैसा है। कलर एंड नेचर हैव टू बी आर्ग्यूड एंड जस्टिफाइड। सर सिमिलरली उसने 52 सेक्शन में DCS की बात की है, उसका भी उसने ऑन और बिफोर 30 जून 2020 ही बोला गया है। सर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी चैट बॉक्स में भी लिखी थी कि भाई पॉइंट नंबर 11 में उसने बोला है कोई भी प्रोविजन, कोई भी कंप्लीशन, कोई भी कंप्लाइंस अगर रह गई है और जिसकी डेट 20 मार्च से 29 जून के बीच फॉल करती है, सच एक्शन कैन नॉट बी टेकन अप टू 30 जून 2020। सर आई बिलीव अब आपको नोटपैड और पेन फिर से एक बार खोलना होगा। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? नकुल, इज द वॉइस क्लियर? या नव्य, मुझे क्लियर आ रही है। मैं वही चाहता हूँ कि सारे मेंबर्स से पता लगे कि उनको क्लियर है या नहीं, या कुछ मेंबर्स को अगर क्लियर नहीं है तो वो मे बी ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, आई बिलीव आई शुड कंटिन्यू। आई हैव टाइम 15 मिनट्स मोर ना, क्योंकि उसके बाद मुझे क्वेश्चन आंसर राउंड खोलना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा एक्सक्लूजन्स लिखवाना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा प्लीज नोट कर लीजिए, दीज एक्सक्लूजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके ऊपर कंप्लायंस अभी भी एक्सटेंड नहीं हुआ है, ये 30 जून तक डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहले उसने एक्सक्लूजन में लिखा है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस। सर उसने ना वहां पे सेक्शन नंबर मेंशन कर रखे हैं, इसलिए अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन यहां से अब आप इस्टेब्लिश क्लियर करिए अपने आप को। उसने लिखा है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर कोई 30 जून तक एक्सटेंशन नहीं किया गया है, यानी कि आज अगर आपके इनवॉइस, सर प्लीज बात समझिए, आज मैंने कोई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे दी है और उसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो चुका है, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसका इनवॉइस जाकर ही 30 जून को काटूंगा। यानी कि टाइम एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस आज भी एक्टिव हैं। नेक्स्ट सुनिए ध्यान से, there is no extension
for the person who is liable to get registered under section 22 or 24. यानी कि अगर आपकी कंपलसरी लिमिट ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन क्रॉस कर जाती है 20 लाख से ऊपर, या आप कोई ऐसी सप्लाई करते हैं जो सेक्शन 24 में कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन के अंदर मेंशन्ड है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन फुली एक्टिव हैं, आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होगी। कहीं आप ये कहें मेरी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गई और वो ड्यूरेशन जी 29 जून से पहले पड़ रही थी, तो मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करी और मैंने सोचा हर चीज तो आगे कर दी गई है तो मैं अब 1 जुलाई को जाके रजिस्ट्रेशन अप्लाई करूं, ऐसा नहीं है। आगे सुनिए, उसने लिखा अगर आप लेट अस सपोज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या आपने सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, आपने सोचा यार मैं अभी भी किसी तरह दूसरे स्टेट में जाके एग्जीबिशन करना चाहता हूं, आई बिलीव अभी हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, बट उन्होंने कहा लेट अस सपोज कोई ऐसा सर्कमस्टेंस बन भी गया कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह लेनी होगी, यानी कि सीटीपी और एनआरटीपी यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के प्रोविजंस आज भी एक्टिव है। ठीक है, आगे सुनिए सर, टैक्स इनवॉइसेस की जो लिमिट्स सेक्शन 31 में स्पेसिफाइड हैं उसको भी एक्सक्लूड किया गया है इस कंप्लायंस की डेफरमेंट से, यानी कि अगर सेक्शन 31 कहता है कि आपके सर्विस प्रोविजन के 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए, तो वो आज भी होगा। अगर आरसीएम का केस है तो 61वें दिन पे आपका इनवॉइस मान लिया जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हैं। अगर 31 में लिखा है कि बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स आपका इनवॉइस होना चाहिए, तो वो आज भी माना जाएगा। ठीक है, आगे समझिए सर, आपकी लेट फी और इंटरेस्ट के सेक्शंस को नहीं डेफर किया गया है, हाउएवर रिलैक्सेशंस दी गई हैं। आपका सेक्शन 69 के अंदर पावर टू अरेस्ट है। आपने सोचा भाई सब कुछ तो आगे कर दिया गया है, मैं एक काम करता हूं, मैं फ्रॉड कर जाता हूं इस ड्यूरेशन में, मुझे अरेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, मैं 5-5 करोड़ रुपए के फ्रॉड कर देता हूं। तो इन दैट केस उन्होंने कहा पावर टू अरेस्ट आज भी एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि उसको भी डेफर कर दिया गया है। आगे उसने बोला डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज सेक्शन 129 और 130 आज भी फुली वैलिड है। उसने बोला अगर आपका माल जा रहा है और रास्ते में अगर डॉक्यूमेंट्स का लैप्स है तो डिटेंशन के लिए लायबल है, सीजर के लिए लायबल है। आप ये नहीं कह सकते कि गुड्स लायबल नहीं है सर, कंप्लाइंस आ गया, ऐसा नहीं है सर, ये कंप्लाइंस आज भी एक्टिव है। सर उसने आगे आपके लिए एक और चीज बोली कि अगर आप एक सेकेंड, अगर आपने कोई भी कंप्लाइंसेस इन दैट रिगार्ड छोड़ दिया ई वे बिल से रिलेटेड, उसके लिए भी गुड्स लायबल टू डिटेंशन रहेंगे। हाउएवर मैंने आपको आज भी बोला कि ई वे बिल में एक रिलैक्सेशन है कि अगर आपने बनाया है ई वे बिल और वो एक्सपायर हो जाता है ड्यूरिंग द सेट ड्यूरेशन जो मैंने अभी डिस्कस करी थी, तो इन दैट केस वो डीम टू बी एक्सटेंडेड माना जाएगा। यहां तक आपकी सर 136 की क्लैरिफिकेशन डिस्कस होती है। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी ड्यू डेट्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं, उससे पहले उसके बाद कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बट मुझे बस इतना बताइए, अभी तक आपके अब तक की डिस्कशन पे कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसका लास्ट सेगमेंट बचा है ड्यू डेट्स वाला। आई बिलीव मैं थोड़े से चैट्स देख लेता हूँ। हाउ टू टेक अ क्रेडिट ऑफ सप्लाई विच आर नॉट कमिंग इन 2A। सर कहीं पर भी डायरेक्ट आपको 2A पे क्लिक करके क्रेडिट नहीं लेना होता, आप अपनी मर्जी से अभी भी अवेलमेंट करते हैं। तो सर ऐसा कोई इशू नहीं है। पीछे मैं एक पॉइंट पढ़ रहा था, अभी मेरे से स्किप हुआ है चैट में, मैंने देखा भी था कि उन्होंने लिखा था कि अगर 36/4 नहीं लगाया मैंने अभी तक और 36/4 लगाए बिना 100% क्रेडिट ले लिया, सितंबर में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वो इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, तो क्या इंटरेस्ट होगा रिवर्सल पे? यही पॉइंट था पीछे कहीं मैंने देखा था। यस, यू हैव टू पे इंटरेस्ट देन। उसने सिर्फ आपको रिलैक्स किया है और बोला है क्यूमुलेटिवली लगाएगा आप, आपने क्यूमुलेटिवली लगाना है। तो अब आई बिलीव और कोई क्वेरी है सर इससे आगे? कुछ 180 डेज की क्वेरी है। Department is denying the credit in one of my case for the period of July 17 to 19 before 36/4. However, I have all the invoices payment within. सर आप ध्यान से समझिए, दो चीजें लिखेंगे। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपको ये नोट करना होगा। सर साथ ही साथ पीछे एक नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए जो शायद मैं पर्सनली आपके साथ जब पीछे आया था तो वहां पर डिस्कस भी करके गया था। रूल 89 नया आया था, 86A भी नया आया था, जिसमें उसने बोला था इनपुट रिवर्स कर ब्लॉक कर दूंगा मैं। सर इससे पहले अगर मैं 17-18 की बात करूं, 18-19 की बात करूं, सर उन ड्यूरेशंस तक, सर सितंबर 19 तक आपका सिर्फ 16(2) सेक्शन वैलिड था। आपको 16(2) के ऊपर अपील करके फाइल करके फाइट करना होगा इसके ऊपर। सर मैं आपको छोटी सी एक चीज और डिफाइन कर देता हूँ बिफोर आई प्रोसीड, बट इन दैट केस इफ इंटरेस्ट इज जस्ट अवेल्ड एंड नॉट इंटरेस्ट
सर अगर आपने 36(4) की कंप्लायंस में ही चलते रहे, उस टाइम आपने 100% क्रेडिट ले लिया, सितंबर में पहुंचकर जब मैंने चेक किया तब भी आपने लिए रखा, तो इंटरेस्ट लगेगा ना, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं लग पाएगा अगर रिवर्सल हो गया तो। सर छोटी सी चीज मैं आपसे बोल रहा था, स्किप हो जाएगा सर। अगर आप जीएसटी में कोई भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उस मैटर को अपील में लेके जाते हैं, फॉर्म एप्लीकेबल होता है, फॉर्म नंबर लिख लीजिए, पोर्टल पे अवेलेबल है, APL 01। जब भी आपको लगता है कोई मैटर में ऑर्डर पास हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप APL 01 फाइल करते हैं। APL 01 फाइल करने के बाद आपको 7 दिन के अंदर APL करने के फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में जमा करने होते हैं। 7 दिन में अगर आप जमा नहीं भी करते तो भी वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन 7 दिन में अगर आप जमा कर देते हैं तो वो डे 1 पे माना जाता है एप्लीकेशन, नहीं तो वो जिस दिन सबमिट होगा उस दिन माना जाएगा। APL 2 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद आपका अपील की प्रोसीडिंग चलती है। दिस इज द फर्स्ट अपील्स। इनकम टैक्स में हम CIT अपील कहते हैं ना, वैसे ये APL 01 से आप फर्स्ट अपील करते हैं। इसके बाद अगर आपकी अपील अनफेवरेबल आ जाती है, भगवान ना करे, तो आपका APL 04 जाना होता है। लेकिन सिंस, प्लीज यहीं पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज थी, नोट कर लेंगे, एपलेट ट्रिब्यूनल्स अभी कंस्टिट्यूट नहीं हुई हैं, तो इस वजह से लॉ में थोड़ा सा डेफरमेंट दिया गया है कि टिल द टाइम एपलेट ट्रिब्यूनल्स आर नॉट फॉर्म्ड आप अपील नंबर 2 पे नहीं जा सकते। फॉर दैट इट विल बी अ पीरियड ऑफ स्टे फॉर ऑल ऑफ अस, तो वहां स्टे पे रहेगी ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना होगा। 10% CIT अपील जो इनकम टैक्स में होता है, वैसे यहाँ पे कमिश्नर अपील में जो हम फर्स्ट अपील में जाते हैं 10% प्री डिपॉजिट देते हैं, और एपेलेट ट्रिब्यूनल पे 20% प्री डिपॉजिट देते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा डिस्कशन ड्यू डेट्स पे कर लेते हैं प्लीज। आपकी सबसे पहली नोटिफिकेशन के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन बोला गया 30, नोटिफिकेशन नंबर 30 3 अप्रैल को आई थी। इसमें साफ मेंशन किया गया है कि आपने अगर कॉम्पोजिशन में अप्लाई करना है या ITC 03 भरना है, ध्यान से नोट कर लीजिए, GST CMP 02 या आपने ITC 03 अगर 2020-21 का फाइल करना है, तो उनकी डेट्स रिस्पेक्टिवली क्या कर दी गई हैं। आप 30 जून तक CMP 02 भर सकते हैं और 31 जुलाई तक ITC 03 भर सकते हैं। आगे सुन लीजिए, आपकी GSTR 3B की डेट्स एक्सटेंड नहीं की है, लेकिन कैसे करी गई हैं आप समझिए बात को। उसने बोला फरवरी की डेट जो कि 20 मार्च होती है, अगर आपकी टर्नओवर, प्लीज नोट करिए, टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं पहले। इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, तो इन दैट केस आपका सारा का सारा मेंशन किया गया है। when we get the hearing, sir, soon we get the hearing after we file the APL 01 or requisite documents. सर आगे समझिए, नोटिफिकेशन नंबर 31/2020, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट का वेवर, और 32/2020 में लिखा हुआ है लेट फी का वेवर। सर अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो अगर आप 15 दिन ऑफ योर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स, सर अगेन आपकी ड्यू डेट होती है 24 तारीख, अगली 24 तारीख तक अगर आप रिटर्न सब्सिक्वेंटली मंथ के 15 दिन और ऐड करके भर देते हैं, तो इंटरेस्ट 0 होगा। आफ्टर दैट आपका इंटरेस्ट एक्टिव हो जाएगा, कितना, 9%। लेकिन अगर आप 24 जून के बाद भरते हैं 24 जून के बाद भरेंगे, तो आपको वेवर्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्लीज नोट, फॉर द पीपल हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, एवरी बेनिफिट कैन बी टेकन ओनली अप टू 24th। आगे देखिए, आपका इंटरेस्ट 24 जून तक लेट फी का वेवर है, 24 जून तक आपका पेनल्टी का वेवर है। इंटरेस्ट के लिए आपको एक चीज नोट करनी है, इंटरेस्ट ऑफ 18% विल बी एप्लीकेबल इफ द रिटर्न्स आर फाइल्ड आफ्टर 27 जून, 27 जून के बाद। छोटी सी चीज एक और नोट करनी है अब आपको, अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ है, मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ है, तो आपके लिए फरवरी मार्च दोनों की कट ऑफ डेट रखी गई है 29 जून 2020, 29 जून 2020। तब तक आपका कोई भी इंटरेस्ट लेट फी नहीं लगेगा। सर
5 करोड़ से नीचे इंटरेस्ट भी वेव्ड है, 100% बेनिफिट है। हाउएवर अगर आप इसके बाद भरेंगे तो अगेन आई एम सेइंग इंटरेस्ट लेट फी डे 1 से लग जाएगा। प्लीज ये नोट कर लीजिए, फिर आप कहेंगे एक दिन का लगना चाहिए, एक दिन का नहीं लगेगा। आगे समझिए, आगे उसने बोला अगर अप्रैल 2020 की रिटर्न है तो ये 30 जून तक फाइल हो जाने चाहिए। 30 जून, पहले वालों की 29 जून, इसकी 30 जून। मई 2020 की जो 3B की रिटर्न है, मई 2020, इसके लिए आपको बोला गया है 12 जुलाई या 14 जुलाई, स्टेट वाइज जो उन्होंने नोटिफाई किया है। अब मैं बात करूंगा लास्ट कैटेगरी की, आपकी टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर। इसके लिए उसने फरवरी की रिटर्न का कट ऑफ दिया है आपको 30 जून, मार्च की रिटर्न के लिए आपको कट ऑफ दिया है 3 जुलाई, अप्रैल के लिए आपको कट ऑफ दिया है 6 जुलाई, और मई के लिए आपको कट ऑफ दिया है अगेन 12 जुलाई या 14 जुलाई। सर यहां तक आपके इंटरेस्ट, लेट फी सबका वेवर चलेगा, ठीक है। जीएसटीआर 1 पे आता हूं मैं। जीएसटीआर 1 की सारों की कट ऑफ 30 जून कर दी गई है आपके लिए। सर ये सारी चीजें आई बिलीव मैं ब्रांच के साथ विद नोटिफिकेशंस, और मैंने जो प्रेजेंटेशन भी बना रखी है वो शेयर भी कर दूंगा। अगर आपसे कुछ स्किप हो गया, अगर लिखना, डेट्स ऊपर नीचे ना हो जाए, मैं आपको पर्टिकुलरली क्योंकि ये चीज एक टेबल फॉर्मेट में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आई बिलीव नाउ आपकी अप्रोक्सीमेटली सारी अमेंडमेंट और सब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट विद अगेन आपके जो हॉट एंड बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं। एक चीज से मैं और कंक्लूड करना चाहूंगा, हाँ, आई विल श्योरली शेयर विद द ब्रांच, आई बिलीव ब्रांच विल शेयर विद द मेंबर्स, ठीक है। एक चीज मैं आपके साथ और चीज बोलना चाहूंगा, आपको एक इंटरेस्ट का नोटिस आ रहा था, इंटरेस्ट अंडर ग्रॉस या नेट का, वेलकमिंग चेंज हो चुका है। प्लीज कीप योरसेल्फ अपडेटेड, ग्रॉस पे जमा मत कर देना। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इट विल बी डिपॉजिटेड ऑन नेट बेसिस, एंड ये फाइनेंस मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बोला भी था। तो आई बिलीव नाउ इट इज पब्लिकली डिक्लेयर्ड इट हैज टू बी ऑन नेट बेसिस फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ओनली, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा। आई बिलीव आपका सेशन थोड़ा सा आज इंटरेक्टिव रहा, वैल्यू एडिशन रहा, और मेरे को लगता है आप बोर नहीं हुए। और आपके लिए बहुत एक एडवांटेजियस सिचुएशन ये रही कि मेंबर्स का काउंट मैं भी देखता रहा, गिरा नहीं, मतलब वो थके नहीं, या तो उठ के नहीं गए या ऑन करके चले गए। आई बिलीव वो नकुल और ललित जी और शैली जी देख रहे हैं पूरा। तो इट वाज आई बिलीव माय प्लेजर। अब आपके कोई क्वेरीज हैं तो आई एम वेरी ओपन टू इट। आई बिलीव एग्जीक्यूटिव मेंबर्स विल ट्राई टू मॉडरेट दैट विद मी। नवे जी एक क्वेश्चन है हाँ जी, कि रेफरेंस टू जीएसटीआर 9C इज नॉट मेड इन सर्कुलर नंबर 136। क्या सर, फिर से बोलेंगे एक मिनट? रेफरेंस ऑफ जीएसटीआर 9C इज नॉट 9C मेड इन। सर, उसको हम कंप्लाइंस के अंदर लेके चल रहे थे। अभी मैं आपको वही बताता हूँ, 136 के अंदर कहीं पे भी 9C का रेफरेंस नहीं है। हाउएवर नोटिफिकेशन जो 15 है और जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर उसका मेंशन्ड है प्रॉपर्ली। हाउएवर अभी उस पर एक्सक्लूसिवली मैं आपको बता देता हूँ 5 करोड़ से ऊपर की मैं आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नंबर आई बिलीव मैं चेक करके भी आपको भेज भी दूंगा। उसमें आई बिलीव 15 में ही, या जो मैंने आपके साथ 16 नोटिफिकेशन डिस्कस करी है आई बिलीव वो खुली है, उसी में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपकी 9C की डेट 30 जून मानी जाएगी। मैं एग्जैक्ट आपको नोटिफिकेशन चेक करके सेंड भी कर दूंगा सर, डोंट वरी, है पक्का सर। 16th में ही आई थिंक सर। विच इन केस ऑफ पैन, सर क्या क्वेरी थी ये? इन केस ऑफ पैन exceeds 2 crore, GST applicable within the same state or all state? Yes, it is applicable to all states. It is a PAN based thing you need to check. तो हर एक पे, इवन इफ आपके एक स्टेट में टर्नओवर नहीं भी है उसकी तब भी 9C जाएगी, चाहे नील जाएगी सर। आगे क्या लिख रहे हैं आप? प्लीज डिस्कस 17.5 विद रिस्पेक्ट टू फ्री सैंपल्स विद मेन प्रोडक्ट बाय वन गेट वन। सर ये एक बहुत बड़ा मैटर है, नोट कर लीजिए। मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप जब जाते हैं एक मॉल में जाते हैं, आप कहते हैं भाई 2 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री है, 2 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री की स्कीम लगी हुई है 2+1 की।
सर ये ना आपका इनवॉइसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, 17.5 ट्रिगर होगा या नहीं। सर अगर आपकी इनवॉइसिंग ऐसी है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ टाइप ए इनवॉइस और टाइप बी इनवॉइस। अगर टाइप ए इनवॉइस है वो ये कहता है शर्ट ए 1000 रुपए, शर्ट बी 1000 रुपए, शर्ट सी 1000 रुपए, लेस डिस्काउंट 1000 रुपीज, नेट पेबल 2000 रुपीज। इन दिस केस 17.5 ट्रिगर नहीं हो पाएगा सर। इन दिस केस इट इज 100% डिस्काउंट आई हैव गिवन। सर टाइप बी ऑफ इनवॉइस सुनिए, शर्ट ए 1000 रुपए, शर्ट बी 1000 रुपए, शर्ट सी 0 रुपीज, शर्ट सी 0 रुपीज, नेट पेबल 2000। इन दिस केस सर आई बिलीव आपका 17.5 इनिशिएट हो जाएगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन एज प्री सैंपल्स। सर अगर आप पोस्ट सेल सर्विस की बात करते हैं, फ्री रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं, तो आई बिलीव वो जब आप सेल करते हैं उसकी कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडिंग होता है, तो रिप्लेसमेंट्स पे इसलिए आईटीसी रिवर्सल्स की बात नहीं आ पाती है। आगे लिख रहे हैं सर ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स लास्ट में भी शेयर भी कर दूंगा। मैं ऑल द मेंबर्स मैं शेयर कर दूंगा सर। यहाँ पर लिखा है प्लीज डिस्कस डिफरेंस बिटवीन, सर विच रिस्पेक्ट में आप डिफरेंस पूछ रहे हैं धारा जी, मेरे को बताएंगे एक बार, तब तक मैं आगे की क्वेरी पढ़ रहा हूँ। इफ अ सप्लायर डज नॉट शो सेल बिल बट आई हैव द बिल विल नॉट कम। ध्यान रखनी पड़ेगी राहुल जी, एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें, 36(4) एप्लीकेबल है, क्रेडिट नहीं दिख रहा, नहीं मिलेगा सर, 10% तक ही ले सकते हैं, तो ये 36(4) से बाहर हो जाएगा और आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, इट विल बी अ मिसमैच। ये प्रॉपरली रूल आया हुआ है, ये रूल एप्लीकेबल है बाय वाइड नोटिफिकेशन नंबर 49। कॉपी ऑफ मटेरियल सर मैं शेयर कर दूंगा सर। विच 136 में विच ड्यू डेट, आई एम सेइंग नो ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड सर, ड्यू डेट किसी की भी एक्सटेंड नहीं की गई है। ड्यू डेट सिर्फ और सिर्फ 51 और 52 जो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि उसके लिए रिलैक्स किया गया कि जब तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेट फी और पेनल्टीज और इंटरेस्ट को एक एक्सटेंड तक आपके लिए रिलैक्स किया गया है बस। इफ माई परचेज, हाँ एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छा सतीश जी ने क्वेश्चन पूछा है। इफ माई परचेजेस आर 18 but all supplies are 12, will I get the refund? Yes, you will get the refund sir. It is an inverted duty structure. However, I want to add one more point to it sir. Let us be practical on this now. सर अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 18, 12 और 5 तीनों परसेंटेजेस के हैं लेट अस सपोज, और आपकी आउटपुट टैक्स है 12%, तो क्या आपको 12 और 5 का रिफंड मिलेगा? यस और नो सतीश जी, यस और नो तो लिखिए। आपके पास इनपुट टैक्स है 18, आपके पास इनपुट टैक्स है 12, आपके पास इनपुट टैक्स है 5%, तीनों किस्म के, और आपकी आउटपुट सिर्फ एक है 12%। क्या आप 12 और 5 का रिफंड ले सकते हैं या सिर्फ 18% वाले इनपुट का रिफंड ले सकते हैं? सतीश जी मना कर रहे हैं, और कोई? महाजन जी भी 18 कह रहे हैं, सिमरन 18, वी कैन टेक ऑल। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएटेड है, सर्कुलर नंबर 125 नोट कर लीजिए प्लीज। इट क्लियरली सेज मिक्स्ड क्रेडिट्स का भी 100% रिफंड मिलेगा। सर हमें अवेयरनेस लानी है यही चीज की। आपको 18, 12 और 5 तीनों का रिफंड मिलेगा। जीएसटी नोवेयर टॉक्स अबाउट नेक्सस बिल्डिंग, वो रिलेशन बनाने की बात नहीं करता, यानी कि आप तीनों का रिफंड ले सकते हो। अभी पीछे किसी ने एक ईमेल आईडी शेयर किया हुआ था, मैं ब्रांच के साथ शेयर करूंगा, आई बिलीव ब्रांच विल शेयर, दैट इज बेटर। नोटेड सर। ठीक है, सो नकुल प्लीज प्रोसीड। नवे जी नोट कर लिया वो। हाँ जी ललित जी ईमेल आईडी नोट कर लिया। ठीक एक है, सर्कुलर नंबर 125 का डेट और मंथ बता ये सकते हैं? देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये देखिए, ये लीजिए सर, 18 नवंबर 2019, सर्कुलर नंबर 125। सर इट इज अ 29 पेजेड सर्कुलर। इसमें आप जो रिफंड के बारे में सोच सकते हैं वो सब मेंशन्ड है, और आपको बस एक चीज आपको इसमें दिखा देता हूं, और इसमें
ये देखिए सर, पैराग्राफ नंबर 38 सर, ये कहता है कि 37 में ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर कि आपको किस ऑर्डर में रिफंड लेना होता है। ये कहता है आईजीएसटी में लो पहले सारा, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी में इक्वल लो, और अगर फिर कुछ बच जाए तो डिफरेंशियल एसजीएसटी से निकाल लेना या सीजीएसटी से, व्हाटसएवर जो बच गया वहां से निकाल लेना। सर यहाँ पर वो ये बोलता है इवन इफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है सर, ये देखिए, however for application which order is not adhered by the applicant no adverse view may be taken by the tax authority। अगर आप रिफंड गलत ऑर्डर में भी अप्लाई कर देते हैं तो भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पोर्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑर्डर को देना, और पोर्टल ने नहीं किया, यानी कि अगर आप गलती से गलत भी अप्लाई कर देते हैं आपके ऊपर एडवर्स एक्शन नहीं होगा। सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस वाले में जहां पर आपको सर्कुलर 125 बहुत सारी नई चीजें भी सिखाएगा रिफंड के ऊपर। और कोई केसेस हैं सर? इन केस ऑफ मोबाइल्स रेट हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन सेल ऑफ स्टॉक ऑफ 12%। आप उसको 18 में ही बेचेंगे क्योंकि अब उसका रेट चेंज हो चुका है। नाउ जीएसटी रेट ऑन मोबाइल चेंज फ्रॉम केस 18 ही लगेगा उस पर जब आपके गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, नेक्सस बिल्डिंग में नहीं चल रहा है। अगर आप क्रेडिट नोट की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट बैकडेट के इनवॉइस से ही रिलेट किया जाएगा। हाउएवर अगर वो नई सप्लाई मान के रिटर्न करता है और इनवॉइस काटता है तो 18% पे कटेगा। सर इफ आई रेज अ टैक्स इनवॉइस ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड इज इट वैलिड बिकॉज देयर इज नो मोमेंट? इनवॉइस, आप बात समझ लीजिए प्लीज। आज मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ई वे बिल का अगर आप सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 68 और साथ ही साथ रूल 138 पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज क्लियरली लिखी हुई है कि आपको ई वे बिल बनाना होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। इनवॉइस इज नॉट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इनवॉइस इज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। सर दोनों में फर्क होता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है जब असली में मूवमेंट हो रही हो, और सप्लाई होती है शायद आपका मन तो था सप्लाई करने का लेकिन मूवमेंट हुई ना हुई, इट इज इररिस्पेक्टिव। आप जरूर इनवॉइस काट सकते हैं बट मूवमेंट से पहले ई वे बिल होना चाहिए, बस ये फर्क है। छोटी सी एक चीज और नोट कर लीजिए, जब भी मैं इनवॉइसिंग करता हूँ सर आपका एक राइट है, एक राइट बता रहा हूँ, रास्ते में जब माल पकड़ा जाता है तो सेक्शन 68 और रूल 138 क्लियरली बोलता है कि ऑफिसर के पास राइट है इन द इंटरसेप्शन टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। सर क्या वो आपकी वैल्यूएशन को चैलेंज कर सकता है? वो आपकी वैल्यूएशन को चैलेंज नहीं कर सकता। आपने कहा मैं 100 की चीज 80 में दूंगा, 80 की चीज 20 में दूंगा, आपकी मर्जी है सर। समझ रहे हैं? तो आपको इसमें कोई अपने आप को टेंशन नहीं लेनी है। यू कैन रेज वेरी वेल ऑल इनवॉइसेस इन द लॉकडाउन पीरियड। Can you provide me the date of circular with expenses on which RCM? Sir, you are talking about 9/3 का RCM? Sir, 9/3 के RCM जून 2017 में वाइड नोटिफिकेशन नंबर 12 आई बिलीव 12 है, उसके अंदर सारे लिखे हुए हैं। ड्यू डेट ऑफ रिफंड ऑफ अप्रैल 18। सर सारे रिफंड्स के केस में हाँ मैं ड्यू डेट की डिस्कशन करनी रह गई थी। सर ड्यू डेट्स आपकी 1 फरवरी 2019 से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की चेंज हो गई थी। सिर्फ उन्होंने बोला था इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में टैक्स पीरियड के 2 साल तक आप अप्लाई कर सकेंगे। हाउएवर बाकी सब में सारी सिंक्रोनाइजेशन यही थी कि मोस्टली पीरियड में टैक्स पीरियड ही होता है। टैक्स पीरियड से 2 साल, टैक्स पीरियड की रिटर्न की ड्यू डेट से 2 साल तक आप रिफंड अप्लाई कर पाते हैं। हाउएवर 54 सेक्शन में डिटेल्ड आपके अगर केसेस ऑफ कैश लेजर है रिफंड तो अलग डेट है। सारी डिटेल्स उसमें स्पेसिफिकली और मेंशन की गई हैं टाइप ऑफ रिफंड के हिसाब से। For ITC can be taken for all rates. Sir, ITC can be taken for all rate is mentioned in circular number 125 only. Not clear those are state that ITC booked. ठीक है, ये आज आपका मेरे को अभी मेल भी आया था कि आपने 53 लाख रुपए ले रखा है लिख दिया है और अगले साल सिर्फ 40 लाख लिया है। तो आपको मैं बता देता हूँ 16/4 अलाउ करता है कि आप सितंबर के बाद क्रेडिट नहीं ले सकते पिछले साल का, सितंबर के रिटर्न के बाद। आपको एक चीज नोट करनी है इसमें, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में राइट होता है राइट टू बी ट्रीटेड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आज ऑफिसर आपसे पिछले टाइम का टैक्स रिकवर कर सकता है तो पिछले टाइम का इनपुट देना भी उसका राइट है आपको। तो आपको इस पे कॉन्स्टिट्यूशनली आप ये कहें फर्स्ट अपील या सेकंड अपील पे खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। ये केसेस हाई कोर्ट जाएंगे। यू हैव टू गो टू दी सब्जेक्टिवली हायर जुरिडिक्शंस टू डील सच केसेस, तब आपको ये इनपुट मिल जाएगा। व्हाट शुड बी द डेट ऑफ कैंसिलेशन? द डेट ऑफ एप्लीकेशन date of application, it is actually from the date of application retrospectively.
तो वहां से पीछे से आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है. इज इट मैंडेटरी टू पे जीएसटी इन केस ऑफ नॉन होल टाइम? यस, नॉन होल टाइम डायरेक्टर के केस में आपका आरसीएम एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल होता है. इन केसेस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर एप्लीकेबिलिटी नहीं होती. यहाँ पर एक ग्लिच और है. लोग क्या करते हैं, इसको गलत डील करते हैं. कहते हैं भाई होल टाइम डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी नहीं है, अगर वो गलती से कमीशन लेता है तो क्या उस पर जीएसटी है? आरसीएम सर बात समझ लीजिए, अगर होल टाइम डायरेक्टर है तो होल टाइम डायरेक्टर इज दी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉई. तो आप उसका एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट और उसकी रेजोल्यूशन ही ऐसे पास करिए कि उसके अंदर लिखा हो कि उसको कमीशन भी मिलेगी एंड इट शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय एग्रीमेंट. हेंस आई कैन से उस पे भी आरसीएम ट्रिगर नहीं हो पाएगा. फिर समझ पा रहे हैं? तो I believe now I am over with all the queries, so I leave the floor with the executive team now. नवे जी एक क्वेश्चन है. हाँ जी. एक कमीशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर will it be treated as intermediary service or it can it covered under export of services? सर ये ना सब्जेक्टिवली पीछे भी डिस्कस हुआ था एक जगह. ये इंटरमीडियरी में ऑन द फेस कॉल कर जाता है क्योंकि इट इज अ बायर सेलर मीट, आई काइंड ऑफ से. बट हाउएवर आपकी एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग कुछ ऐसी तरीके से की हो सकती है कि यहाँ पर ये दिखे कि आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की है. बट अगर आप मुझे बोलते हैं ब्लंटली कि बाहर से कमीशन आई फॉर दी students, it will be surely becoming a dispute for intermediary service. Yes. Thank you. Lalit ji, please. Now I will request all the participants, in case they have any query, then please raise your hands finally so that we can connect them directly to our speaker. Nave, allow me to connect to them Yes. directly. Yes. Okay. Firstly, I have connected CA Priya said to you. Priya, please go ahead. I believe, is she asking it through questions written or video? No. It's through her voice. I'm unable to get her voice actually. Hi Priya. Yes. Okay, now. प्रिया ने क्वेश्चन वैसे रिटन में पूछा हुआ है दैट प्रिया जी आपने क्वेश्चन पूछा है कि 9C से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है. Priya, can you please speak? Yes, 9C में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि in 9C table number 12 should we mention the actual amount of 40 lakh size ITC booked in the next financial year or constant? आपको एक्चुअली ही लिखना पड़ेगा उसमें. आपने 40 लाख ही अवेल किया अभी तक. अब आप ये कहेंगे कि मैंने 53 लाख आपने नेक्स्ट. अब उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, एक लीगल, आप अगर आपने पढ़ा हो उसमें बोला था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. आप उसमें 53 लिखकर भी ये डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की थी, उसमें सितंबर तक की बात नहीं करी थी. तो आप पूरा 53 लाख लिख के भी डिस्प्यूट में आगे ले जा सकते हैं उसको. कोई इशू नहीं है प्रिया मैम. Okay. सर सिटिंग फीस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर अगर वो आउटसाइड है, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एग्रीमेंट. शगुन जी, उस पे जीएसटी का आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा अगर ये एस्टैब्लिश हो गया कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. आगे लिखा है क्रेडिट टेकन ऑन परचेज ऑफ फ्री एक्सेसरीज नीड टू बी रिवर्स्ड इफ यू आर रेजिंग जीरो इनवॉइस. यस, यू नीड टू रिवर्स एज पर 17(5). वजीर साहब, नहीं वजीर मैम, शैलजा मैम है, तो यस उसमें रिवर्स करना होता है आपको. आगे लिखा है एनी नोटिफिकेशन, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट. yes, any notification, if you are talking about notification will be soon out, don't worry, आप तब दिखा पाएंगे. however अभी press release itself clearly says कि interest net पे ही जाएगा. I believe now the queries are over. One more query by Nitin Mahajan ji. Yes, Mahajan ji. Any अच्छा नहीं हो गई, you have replied that it was with respect to the interest. हो गया सर वो.
Thank you. I hope इसके बाद कोई query नहीं है members की. Now I would like to share, for that being, I would like to share my contact number also. My contact number is 8447 137 367. 8447 137 367. If at all anywhere अगर आज आपका कोई point छूट गया हो या पढ़ने के बाद आपको आज मन करे कि कुछ और query निकल आई है, तो you can freely get in touch with me 8447 137 367. So you can connect with me anytime. I believe I request please WhatsApp नहीं करेंगे, आप call कर लेंगे. Call करेंगे, I will surely try to respond on time. And would like to and would love to get connected और आपकी query resolve हो सके कुछ GST की. मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है ललित जी ने. How many days we get the input tax refund? Sir, it is subjectively refund. एप्लीकेशन से 61वें दिन तक अगर रिफंड नहीं मिलता तो आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है मिलना. बट हाउएवर आज की डेट में रिफंड कमिट नहीं कर सकते सर कब मिल रहा है. प्रैक्टिकली इट टेक्स टाइम. कभी कभी बहुत जल्दी भी मिलता है और बहुत लेट भी मिलता है. माई ईमेल आई डी नीरज जी, it is navyamalhotra28@gmail.com. So it was my pleasure to get connected with you all. So yes, so I believe team please suggest me कि और कोई query है या कुछ है. A query by Himanshu Chaudhary. Himanshu, so limit is 2 crore for GST and not for 9C is extended. Yes, 9C की limit नहीं extend की गई है. But let me be frank about you with you. Many organizations, organizations, I can say trust or many indirect tax forums have requested the government to increase it to 5 crore. And even many forums have also requested the finance ministry to extend the date of 99C further also for some duration, because 30th June every date will get clash. Let's see what the finance ministry has to do about it in the later course of time. I hope तब तक हम लोग जितना काम अभी घर से कर सकते हैं 99C के रिगार्डिंग उतना करते रहें. एंड श्योरली आई विल ऑल्सो ट्राई टू कीप यू पोस्टेड कि अगर 99C में कोई अमेंडमेंट्स आ रही हैं या फॉर्म खुल गए हैं अगर और प्रॉपर्ली डिटेल्स दिख रही हैं तो आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद द ब्रांच सो दैट एवरी टाइम यू कैन गेट अपडेटेड अबाउट इट. थैंक यू. Thank you, Navya. So now I would like to share the screen with CA Shailaj Rajdan, and he will present the vote of thanks. Thank you, Nakul. I would like to first of all thank CA Navya Malhotra for accepting. Hope I'm audible, Nakul. I have a poor internet connectivity here, so that's why my internet is getting disconnected once again. Thank you, Navya. You've exceeded to a request whenever the branch has asked to you, and it was a wonderful presentation. Everybody, I think all the participants today, we had what I was observing here today, that we had participants from our branch and a lot of people from outside the branch as well who were viewing this seminar today. I'm really grateful, Navya, for addressing the queries of the members as well after this seminar is. Once again, I would like to thank each and every member and every participant who has contributed in making this today's seminar very interactive and a wonderful session. And in the end, I would request each and everybody from our members and everybody, our chartered accountant fraternity, to once again, come forward. And we are going through a very unprecedented situation. Our president has requested each and everybody to contribute generously in whatever way, whatever small way you can, kindly contribute to the COVID fund of ICI, and let us be part of the nation building process in this hour, which is very turbulent for the world. And everybody, during these testing times, I request everybody to kindly stay safe, be healthy, be safe, and
remain in your homes. We'll also try to organize some more of these events in future as well. Maybe within a couple of days also we might host another webinar. With these words, thank you everybody. Thank you everybody for being with us today. Thank you so much.